جی وعلیکم السلام۔ جی عبد الکبیر بھائی بولنا ہے؟ جی عبد القدیر بول رہا ہوں۔ جی خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ ابن القاسم بول رہا ہوں۔ جی ابن القاسم بات کر رہا ہوں۔ کون بات کر رہے ہیں؟ ابن القاسم۔ ابن القاسم، جی بولیے۔ خیریت ہے؟ وہ اصل میں بہت دنوں نے آپ سے استفادہ کرنا تھا ایک دو چیزوں پر، یہ بھی آپ کی ایک پوسٹ دیکھی تھی تو ایک سیکنڈ بھائی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کی پوسٹ دیکھی تھی اچھا اچھا اچھا۔ تو اس تعلق سے کچھ تھوڑا سا ہمیں بتا دیے، ہمیں معلومات نہیں ہے۔ جی جی بتائیے۔ تو یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ جو آپ کی پوسٹ ہے، تو اس میں آپ نے لکھا ہے مولا علیہ السلام کے زمانے میں ہاں دو، ہاں ہاں، اور پھر اس کے بعد اموی دور میں مولویوں نے بڑی چالاکی سے معاویہ کی ٹیم کا نام اہل سنت کر دیا، پھر معاویہ جیسے مجرم اور مکار شخص کو عظیم صحابی بنا کر پیش کر دیا۔ ہاں ہاں۔ جی، پھر اس میں ہے آگے، اب اس دور میں بھی معاویہ جیسے کھلے منافق کو صحابی بنانا دراصل امت کو چغت بنائے رکھنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے لفظ جو ہے چغت ہے دال کے ساتھ میں، تعبیر الرؤیا دیکھیں گے نا اردو والی جو ترجمہ ہاں ہاں ابن سیرین کا، تو اس میں لفظ مل جائے گا چغت کا، اس کے معنی الو کے آتے، فارسی لفظ ہے یہ، تا کے ساتھ نہیں ہے، چغتائی کی ٹھیک طرح۔ ہے۔ اچھا خیر، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جو ہے منافق مانتے ہیں یا صحابی مانتے ہیں؟ صحابی نہیں ہے بھائی، وہ کہاں سے صحابی ہو گیا؟ اچھا، تو صحابی نہیں مانتے ہیں آپ؟ نہیں نہیں۔ اچھا ارے بھائی، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر جاتے ہیں، وہ کہاں سے؟ تو آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا بھائی۔ جی، ہاں، تو جس کے بارے نبی میں علیہ حضور السلام نے حضور بیان کیا حضور ہے۔ علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح، یعنی واضح جو ہے وہ ارشادات موجود ہیں، احادیث ان کی واضح موجود ہیں، جی جس میں جن کی بنیاد پر معاویہ کہیں سے بھی یعنی اس کا نا اس کا مخلص ہونا ثابت نہیں ہے کہیں سے بھی۔ اس کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور حضور کے بیانات دیکھ لیجئے، بات ختم۔ تاریخ وغیرہ کچھ ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، تاریخ سب کوڑا ہے، کچرا ہے، جی سمجھ رہے ہو؟ اس میں ربط یابس سب مکس ہے۔ جی آپ کو ضرورت ہے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، معاویہ کی سیرت اور قرآن کی آیات کو پڑھنے کی، بس جی چیزیں بالکل روشن کی طرح واضح ہیں، صاف ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، کوئی گدلا پن باقی نہیں رہتا جی بھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح جب فرمایا دیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا کوئی سوائے مومن کے، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا کوئی سوائے منافق کے، جی تو جو شخص حضرت علی سے دشمنی کرے، ان پہ لعنتیں کرے، ان کے خلاف تلوار لے کر کے آئے، جی وہ کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے کہ آپ اس کو مومن مانیں۔ جی اور جب حضور بیان کر دیں کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان، جی تو معاویہ کے اندر یہ تمام صفات کامل درجے تک موجود تھی۔ جی ٹھیک ہے، جی ہاں تو یہ جو ہے گویا کہ دو چیزیں ہمیں محسوس ہوئی ہیں آپ کی بات سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کے نفاق پر موجود ہیں، ایک تو وہ متواتر ہیں، دوسرے وہ قطعی واضح الدلالہ ہے، ہیں، صحیح ہے۔ اور نصب ہے اس میں مؤول نہیں ہو سکتی، تعویل نہیں ہے ان میں۔ تعویل کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ کیوں کرنی ہے تعویل؟ ایسے مجرم کے لیے تعویل کیوں کرنی ہے جس نے صحابہ کو قتل کر دیا، اسلامی نظام کو ختم کر دیا؟ کیوں بچانا چاہتے ہو آپ اس کو بھائی؟ یہ مجھے سنیے، بتا دیجئے، جی سنیے تو ایسی کیا ضرورت ہے؟ میری بات تو سنیے، ہم یہ کہنا ہاں چاہ رہے ہیں، تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جتنے بھی طرق سے ہیں، مان لو 100 طرق سے ہیں، نہیں ٹھیک نہیں، ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے تو کہ اس میں ہمیں تعویل ایک کرنی بات کیوں ہے؟ بتائیے، سن تو لیجیے، میری بات تو سنیے، ہاں کہ ہم جو پوچھنا چاہ رہے ہیں یا تو اچھا متواتر سنیے، ایک بات اور کرنا ہے، مشہور یہ ہوں گی یا ریکارڈنگ خبر آپ مجھے احاد میں بھیج سے دینا، ہوں گی، ٹھیک ہے تو نا؟ وہ خبر واحد میں سنو، سے ہیں یا متواتر ہیں؟ ایک دوسرے یہ ان کی جب یہ جو دلالت آپ بالکل سنیے، میری واضح بات و سنیے، صریح ہے تو وہ نص موجود، نص ہوگی نا، تو قطعی الدلالہ ہے یا نہیں؟ کوئی جو بھی آپ میری کہیں گے بہت واضح ہے کچھ بھی ہے، تو مطلب اس کا دو ہی نکلے گا، یا تو قطعی الثبوت یا قطعی الدلالہ ہے۔ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نفاق پر جو حدیثیں دلالت کر رہی ہیں
वो कतई सबूत हैं, यानी मुतवातिर दर्जे की हैं, कतई ऐसी वाज़ेह और साफ हैं कि जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बनती, यानी कि कतई दलाला हैं। फिर अगला एक ये बात है एक काम तो वो पहले आप ये करना, मुअव्वल नहीं सुनिए मेरी है, बात। हाँ, मुतारिज नहीं है, है ठीक ना? है, मैं आपकी बात समझ गया। जी हाँ एक काम तो ये करना आपके, आप जब बात कर लो मुझसे तो चाहे हमारी बात किसी भी तर्जे में जाकर के खत्म हो, जी लेकिन ये रिकॉर्डिंग आप मुझे भेज देना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जी जी बिल्कुल ये मेरी एक दरखास्त है आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी दूसरी बात ये है कि हमारा जो कलाम है उसमें मैं आपको शायद बुरा लग सकूं, क्योंकि मैं माविया की इज्जत नहीं करता हूँ, ठीक है? नहीं, हम भी तो जो है हम हाँ, भी जो है हमें बुरा नहीं लगता। सुनिए आप तो मुझे बुरे लग रहे हो जब आप आदमी उसको की रज़ी अल्लाह अन्हु बात कहते हो है, तो मुझे बुरे लगते हो, है ना? तो मैं भी हो सकता है कि जब डायरेक्ट माविया कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपके नजदीक काबिल एहतराम है, मेरे नजदीक नहीं है। तो आप जब उसको मोमिनों के एहतराम नजदीक करते हैं, काबिल एहतरामी है। सुन तो लीजिए मेरी हाँ बात, हमें हर आयरे गैरे नत्थु गैरे की बात बुरी नहीं लगती। अब यह बात आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। नहीं, और लेकिन मुझे आपकी बात बुरी लगती है भाई। आप अहले बैत के दुश्मन को जब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं और ये कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है, मतलब मेरा दिल दुखता है हाँ कि ये सहाबा के दुश्मन को, नबी के दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को इज्जत देते हैं, तो जी मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, जी ठीक है? तो वो हमारा सिलसिला चलेगा, यानी जब आप उस रज़ी अल्लाह अन्हु बोलोगे तो मुझे तकलीफ होगी, मैं माविया बोलूंगा तो आपको नहीं, तकलीफ वो हो तो जब सकती है। आप तो हमसे आप बात करेंगे तो आप तो मतलब राय के एहतराम के साथ हमारी बात सुनेंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सुन तो रहा हूँ हम तो मैं रज़ी बात। अल्लाह अन्हु कहेंगे, आप नहीं कहेंगे, हाँ ठीक है? हाँ हाँ, हाँ ठीक है ना? तो हाँ आप उसमें कभी ऐसा पारा मतलब वो मत कर लेना थोड़ा हाई पर के, मतलब आप मेरे से डायरेक्ट ज्यादती करने लगो या बदतमीजी करने लगो, नहीं, हम तो क्योंकि बात बदतमीजी करते हमारी हैं बदतमीजी से नहीं होगी, नहीं है ना? नहीं, हम वो हमारा तो अपना एक इल्मी मैं मौके तो से, आपका अपना है, मेरा अपना है, तो वो तो मैं उसी हिसाब से बात करूंगा, है ना? वो बाकी तो हम दोनों के मुखातब के बीच में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है, वो तो हाँ, आदमी की अपनी तबीयत और तरबियत पर है कि वो लिखने में कितनी बदतमीजी करता है, बोलने में हम तो ना लिखने में बदतमीजी करते हैं ना बोलने में, ठीक है? अरे मेरे भाई जब मेरे नहीं तो नजदीक वो सुन तो इंसान लीजिए मेरी काबिल बात। एहतराम नहीं है तो फिर मैं उसको इज्जत नहीं दूंगा ना, बात हाँ तो ठीक वही है, है। अगर हाँ मान लीजिए आप हमारे नजदीक काबिल एहतराम ना हो, मान हाँ लीजिए सहाबा को बुरा कहने की वजह से, हाँ, ठीक है, तो तो फिर मैं आपसे आप बात नहीं इस कर तरह पाऊंगा का ना, एहतराम कलाम नहीं कभी होगा नहीं कर हमारा आगे पाएंगे, ना नहीं फिर हम बुरा कोई मेरा। बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। आप चलिए इसमें मुद्दे पे आइए, वो तो ठीक है, ये सब हाँ चीजें तो पहले से मुसल्लम होती हैं, गुफ्तगू के आदाब में से, है ना? तो हाँ हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी बात से दो नतीजे हमें निकले कि वो हाँ जी, इतनी कसरत से अहादीस हैं, देखिए, हाँ, तवातुर की हद आपने तक जो पहुंच बोला ये चुकी हैं, मैंने यानी आपकी बात कतई सुन ली। अब सबूत मैं हैं, आपको बता देता हूँ, इसका जवाब दे कतई देता हूँ, दलाल ठीक हैं, है? एक मिनट। इसके और हाँ, दूसरे ये है कि वो ऐसी साफ और वाज़ेह हैं कि सुन लीजिए, मुतवातिर वो गैर मुतारिज़ हैं, उनमें तावील की गुंजाइश नहीं है। सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। जी हाँ, जी मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि माविया के मुतालिक हमारे पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, ठीक है, जी वो खबरें आहाद हैं या मुतवातिर हैं, जो भी है, जी माविया के ताल्लुक से हमारे पास जो कुछ भी है मवाद, जी जिसमें से जो कुछ सही है, ठीक है, जिसको हम सही कह सकते हैं कि ये चीज़ सही है, जी इसमें जो है इसकी सेहत में जो है वो कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी रोशनी में माविया का मुनाफिक होना बिल्कुल वाज़ेह है। अब वो कतई दलाला है या वो कतई नस है, वो क्या है, वो मैं बहस नहीं करना चाहता ना, उससे उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसके बात हो ताल्लुक गया से कि जो कुछ हमें मिला है, यानी बात माविया हो नाम का गई कोई शख्स भी अगर मौजूद है तारीख में, जी और वो हमको कितनी मजबूत रिवायत से ये बात पता चल रही है, जी तो उस तमाम, यानी जो कुछ भी उसके ताल्लुक से मौजूद है, जी उसमें जो कुछ सही है, ठीक है, मौजूद तो बहुत कुछ है, जी लेकिन उसमें जो कुछ सही है, जिसको उलमा ने सही तस्लीम किया है कि हाँ भाई ये चीज सही है, इसकी निस्बत सही है, जी उसकी रोशनी में कह रहा हूँ मैं जी आपकी जी बात है, जी ठीक है ठीक है। अब हम क्या बोलें, जी। हम ये कह रहे हैं कि जब आप वाज़ेह और सही की बात कह रहे हैं ना कि ये मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के निफाक पर दलालत करने वाली जो अहादीस हैं वो सही हैं, ठीक है, यही बात आपने कही है। हाँ तो हाँ ज़ाहिर है आपकी सही लुग़वी तो मुराद नहीं ले रहे हैं, मुहद्दिसीन की सही मुराद ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मुहद्दिसीन वाली सही मुराद है। ठीक है। अब अगला मुकदमा ये है कि जो मुहद्दिसीन के नज़दीक सही अहादीस हैं वो ज़न का फ़ायदा देती हैं, क़तइयत का फ़ायदा नहीं देती। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल अब बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो अब मतलब ये बना कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निफाक पर दलालत करने वाली जो अहादीस हैं वो जन का फ़ायदा देनी, उनमें जानिब मुखालिफ का तावील का एहतमाल है। ठीक, रिवायात तो सारी ही सन्नी होती है, माविया की शख्सियत ही सन्नी है इस तरह। तो सुनिए, तो माविया की जो शख्सियत है वो कतई बात हाँ थोड़ा सा सुन तो लीजिए। तो हम वही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप गोया कि उसको मुतवातिर नहीं मानते हैं, जन्नी ही मानते हैं, खबर वाहिद ही मानते हैं ना।
मैं तो ये कहता ही आया हूँ ना कि माविया के ताल्लुक से जो कुछ मौजूद है वो मुतवातिर है, वो ज़न्नी है, वो खबर अहाद में से मैं कह रहा हूँ जो कुछ मौजूद है और जो कुछ सही है, ठीक है, सही है वो बाद में तय हो जाएगा, वो बाद में तय होता है कि कौन सी चीज़ मुतवातिर है, कौन सी अहाद में से है, कौन सी मशहूर है, वो तो हम देख करके तय कर सकते हैं ना। अब्दुल कबीर भाई थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा जहमत होगी यानी ज़्यादा बोलने में, हम तो सिर्फ इतनी बात पूछ रहे हैं आपसे कि मुहद्दिसीन की इस्तिलाह के मुताबिक वो सही अहादीस हैं जो निफाक पर दलालत करती हैं, ठीक है। मुहद्दिसीन के वहाँ जो सही है वो मुतवातिर पे भी सादिक आता है, मशहूर पे भी सादिक आता है, और ठीक है। तो अब ये बताइए कि वो सही होकर के मुतवातिर है, मशहूर है, खबर वाहिद है, कोई ना कोई एक तो होगी ना। बहुत सी देखिए उसमें ऐसा है, इसका मतलब है कि माविया का हजरत अली को गाली देना ये तवातुर के साथ साबित है, और इसमें बेशुमार रिवायात मौजूद हैं, अलग अलग बेशुमार रिवायत मौजूद हैं, और ये बड़ा मशहूर है उम्मीदवार में। निफाक पे जो निफाक पर दलालत करने वाली हदीसें हैं हजरत मुआविया की, वो सही हैं मुहद्दिसीन के नज़दीक, और मुहद्दिसीन के नज़दीक जो सही होता है वो मुतवातिर होता है, तो क़ती है, मशहूर हो तो जो है खबर मशहूर हो या खबर वाहिद हो तो इल्म तमानीनत इल्म ज़न का फ़ायदा देते हैं। और आप जब कह रहे हैं कि वो इल्म ज़न का फ़ायदा दे रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मुतवातिर नहीं है, खबर अहाद है, ठीक है, इतनी बात तो मेरे भाई हजरत अली के जो फजाइल है वो मशहूर है, मुतवातिर हैं, और हजरत अली के ताल्लुक से अरे हजरत अमीर मुआविया नहीं समझे नहीं, हम जो बात कह रहे हैं हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के निफाक पर दलालत करने वाली जो आपके नज़दीक सही हदीसें हैं वो जो है खबर अहाद के दर्जे तक हैं या मुतवातिर के दर्जे तक हैं, आप हमें इतनी बात बता दीजिए। क्योंकि जब आप कतई सबूत की बात कहते हैं तो उसका मतलब है कि वो मुतवातिर हैं, और अगर आप जो है ज़न्नी की बात कहते हैं तो खबर वाहिद है, तो आप एक दर्जा मुतय्यन कर दिए, उसमें क्या दिक्कत है, ताकि बात करने में मैं आसान हूं। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि माविया के निफाक पर सुनिए, मेरी बात सुनिए, जाहिर है उसी तरीके पे बात होगी ना मेरे भाई। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका आंसर यस एंड नो में नहीं ले सकते। माविया के निफाक पर कोई हदीस एक ऐसी नहीं है एब्सोल्यूट जिसको मैं निकाल करके आपको दे दूं कि ये देखिए निफाक है। नहीं, जो माविया की पूरी सीरत और हुजूर के इरशादात जो मुंतशर हैं, ठीक है, वो मुंतशर इरशादात और माविया की पूरी सीरत माना है, यानी मुतवातिर बिल माना है ना, तो माविया की पूरी सीरत और हुजूर के मुंतशर जो अहादीस है, जो रिवायात है, वो इस चीज पर दाल है, ठीक है, कि माविया जो था वो नहीं समझे नहीं, पहले उसका नतीजा ये निकलता है, तो वो नतीजा ये निकलता है भाई, इसी को पूछा अब्दुल कबीर भाई हमने। बिल्कुल 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 बात है भाई, बिल्कुल दलाला है नहीं है, बिल्कुल है, यानी कतई सबूत भी है, कतई दलाला भी है, बिल्कुल है। हाँ, तो यानी हजरत अब देखिए हम सही बात आपकी पकड़ पाए नहीं कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की के निफाक पर दलालत करने वाली अहादीस कतई सबूत हैं, मुतवातिर बिलमाना होकर के, और कतई दलाला हैं गैर मुतारिज होकर के, कि उनमें तावील की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कोई तावील की गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना, ये बात सही है ना। तावील जो करते हैं वो बातिल हैं सब। हाँ, तावील बातिल है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका मौक़िफ़ है, ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलिए अब हम जो है क्या नाम है आपसे पूछते हैं कि थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि वो कौन सी रिवायात हैं कि जो कतई सबूत और कतई दलाला हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुंतशिर हैं, बेशुमार हैं, एक नहीं है, किसी एब्सोल्यूट में रिवायत को निकाल करके आपको नहीं दे सकता। ले लिए ये वाली रिवायत ले लिए जो अभी आपने पढ़ी कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो आदमी मोहब्बत मोमिन करेगा और मुनाफिक रखेगा, ठीक है, तो ये कतई सबूत कतई दलाला है। अरे भाई, इस तरह की बेशुमार रिवायात हैं, समझ रहे हो। पहली बात तो ये है कि ये एक रिवायत नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि एक रिवायत नहीं है। सहाबा के यहाँ बेशुमार बयानात हैं, वो कहते हैं कि हम मदीने में मुनाफिकों को हजरत अली के बुग़्ज़ से और उनकी नफ़रत से पहचान लिया करते थे, ठीक है, ये सहाबा के बयानात हैं, मौजूद हैं जी। तो मौक़ूफ़ात और हुजूर मेयार हक़ हैं जी, सहाबा मेयार हक़ हैं, उनके अक़वाल व अफ़आल शरीयत हुज्जत हुजूर मेयार हक़ है ना। जब हुजूर ने बयान कर दिया कि भाई इससे मुनाफिक नफरत करेगा, ठीक है, नहीं तो सहाबा के अक़वाल से जो कर रहा है ना, तो अगर वो मेयार हक़ नहीं है, आदिल नहीं है, तो फिर कैसे जो है सहाबा की गवाही तो है, आदिल क्यों नहीं है भाई, सहाबा आदिल है यार।
اچھا کیا بات کر رہے ہو آپ؟ جی ٹھیک ہے. صحابہ عادل ہیں، ان کی گواہی موجود ہے کہ ہم اس طرح کیا کرتے تھے، حضور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے والا ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس روایت کے بارے میں تو آپ بتائیے کہ جو منافق جو ہے منافق حضرت علی سے بغض رکھے گا، بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اب اس میں بتائیے قطعی الثبوت قطعی الدلالہ متواتر روایت ہے، اور اس کے اندر جو ہے مطلقاً بغض رکھنے کو جو ہے منافق ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے، یہ خاص اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر. ذاتی مفاد کیا ہے اس میں بھائی؟ ذاتی نہیں، مفاد کچھ مطلقاً بھی نہیں. مطلق حضرت علی سے، حضرت علی مطلقاً حضرت کی بات ہے کہ جو بھی مطلقاً بغض رکھے گا، چاہے بغض فی اللہ رکھے اس کے باوجود وہ منافق ہے، یا جو ہے کیا نام ہے بغض کسی اور طریقے کا ہے تب منافق ہے. نہیں، کسی بھی طرح کا بغض ہو، کسی بھی حضرت طرح علی کا بغض ہو، جب روایت میں بغض ہے تو کسی بھی طرح کا ہاں بغض تو ہو، یہ عام ہے. حضرت علی کا ہاں بغض بغض نفاق فی پر اللہ بھی اگر ڈال ہے. کوئی رکھے گا تو وہ اس صورت میں منافق ہوگا. بالکل ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہے. صحیح نتیجہ نکالا. اب ہمیں ایک بات بتا دیجیے کہ بخاری ہی کی روایت، بخاری کی روایت ہے نا، صحیح بخاری کی نہیں ہے، مسلم کی روایت. ہاں مسلم کی روایت ہے. بخاری شریف کے اندر ہے، ہم نے مراجعات کی تھی، اس کا صحیح والا معلوم نہیں، لیکن ہے روایت، یہ اچھی طریقے سے وہ ہے، اس لیے روایت کرنے میں وہ نہیں ہے. اس کا وہ لفظ مفہوماً بیان کر رہے ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض فی اللہ رکھے گا وہ منافق ہے. ٹھیک. اب اس حدیث کے اندر آیا ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اس کا مفعول بھی ذکر نہیں کیا گیا، تو لہٰذا معصوم ہونے کے علاوہ سب سے گناہ کے سرزد ہونے کا امکان ہے، اور گناہ کی بنیاد پر جو دشمنی ہو یا کوئی بھی خلاف اولا کی بنیاد پر یا کسی بھی طریقے کی اللہ کے لیے ہو تو بغض فی اللہ ہے. تو اس میں کہا جا رہا ہے حدیث میں کہ جو بغض فی اللہ رکھے گا اس کا ایمان کامل ہے، وہ ایمان کو کامل کر لے گا. تو اب ہمیں بتائیے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے عموم میں بھی داخل ہیں، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عموم میں داخل ہیں، نہیں ہے بھائی، داخل ہے. کیوں؟ حضرت علی سے جو ہے نا وہ حضرت علی اس میں شامل نہیں ہے نا. حضرت علی کے بارے میں جب حضور نے بیان کر دیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہیں اور حق جو ہے ان کے ساتھ ہے، اس میں اس حدیث میں قید کہاں ہے؟ نہیں تو لیکن حضرت علی کو الگ مستثنا کر دیا گیا ہے نا ان چیزوں سے میرے بھائی. حضرت علی جو ہے وہ مستثنا ہے ان تمام چیزوں سے. حضرت علی یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہے غیر معصوم؟ بالکل معصوم ہے حضرت علی بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معصوم ہے اس معنی میں کہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کا سرزد ہونا امکان شرعی نہیں ہے ان میں. نہیں، حضرت علی کو جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ جو ہے کبھی بھی یعنی ظلم کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمیشہ حق کے گناہ ساتھ کے تعلق سے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر جو ہے جب عقیدے پہ بات ہو کہ معصوم عن الخطا، معصوم عن الصغیرہ والکبیرہ. نہ اس معنی میں نہیں ہے. دیکھیے نہیں ہے نا، تو صغیرہ و کبیرہ کا گناہ سرزد ہونا امکان ہے نا. تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے امکان کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے الگ کر دیا، اس کو استثناء کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ اس کے اندر کہاں حدیث میں نہیں ہے میرے بھائی. یہ حدیث جنرل ہے، یہ حدیث عام ہے، سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی کی الگ سے اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے، اللہ کے رسول نے ان کی ضمانت دی ہے کہ یہ حق کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے. تو حق کے ساتھ رہنے سے یہ گناہ صغیرہ میری بات سنیے. میں اگر کوئی بات کہہ دوں اس طرح کی جو سب کے لیے عام ہو، ٹھیک ہے، کوئی اصول بنا دیا جائے سب کے لیے عام، لیکن پھر میں آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دوں کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہو، یعنی آپ کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کبھی غلط نہیں کرو گے، کبھی برائی کے ساتھ نہیں رہو گے، آپ ہمیشہ حق پہ رہو گے. پھر میں جن لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ من عاطى للہ وابغض للہ واحب للہ، ان تمام لوگوں کو میں یہ کہوں کہ اے لوگوں علی کے ساتھ رہنا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے نا کہ اس چیز سے اللہ کے رسول نے حضرت علی کو الگ کر دیا، یعنی حضرت علی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ جو ہے نا کہ لا یبغض علیٰ الا منافقون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی بھی حضرت علی سے جو ہے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس حدیث کی بنیاد پر وہ ابغض للہ کے عموم میں تخصیص ہو گئی ہے.
बिल्कुल है भाई। है ना, ठीक है। हदीस देखिए, अहादीस कभी भी अल्लाह के रसूल ने एक साथ बैठ के बयान नहीं किए हैं। हाँ, पहले बिल्कुल आप नहीं किए। समझिए अहादीस किस तरह से हुई है। हाँ हाँ, ठीक है। अहादीस अलग अलग वक्त में अलग-अलग अलग अलग बिल्कुल मौके सही। पे अलग अलग हदीसें बयान जी, हुई जी, हैं, ठीक बिल्कुल है। सही। जी, बिल्कुल और सही। उनके जी, जमाना आगे पीछे रहा है, जी, ठीक है। बिल्कुल। तो आप एक हदीस को लेकर के ज़माने और दूसरी नबूवत के हदीस बाद से, में, ये कुरान ज़माने नहीं है, नबूवत के समझिए, बाद में, अहादीस जो है वो कुरान नहीं है कि उनके अंदर तारुज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अहादीस में तारुज कुरान भी में भी होता है, उनमें तारुज़ सूरी तकदीर। है, कुरान में भी तारुज़ सूरी है, ऐसी बात नहीं है। अगर ना हाँ होता तो बिना सुनिए, नहीं होता। चलिए। हाँ, आप चलिए वो ठीक है, हाँ। मतलब इख्तिलाफ नहीं है आयात के अंदर, ठीक है। नहीं, अभी तो अहादीस में हदीस में भी इख्तिलाफ भी इख्तिलाफ है, है, ऐसी चीज़ नहीं है। अहादीस में तदबीक भी होती है, ठीक है। नहीं, कुरान में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, कुरान की आयत में भी होती है। नहीं है, कुरान में नहीं है, कुरान में तो गारंटी ले रहा है अल्लाह चलिए, वो ताला, कतीउद दलाला वाले फराही साहब के नजरिए पे बाद में बात कर लेंगे। आप इस पे बताइए हमें पहले कि ठीक है। अब गज़लिल्लाही के उमूम में आपने तखसीस की। हाँ, हाँ, अब ये इस हदीस की उमूम और बुनियाद ये पर। इस तरह से जो है ना, ये अलग अलग मौके की अलग अलग बातें हैं। हजरत अली के ताल्लुक से आखिरी हिदायत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बयान फरमाई है कि तो मन अब कुन्तु गज़लिल्लाही मौलाहु मंसूब है। अली मौला व जी, अली वलीयुल मुमिनीन बादी, ये जी, तमाम जो बातें जी, हैं ये बिल्कुल। इससे क्या हुआ कि हजरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बोझ फिल्ला नहीं रखना है। उनसे किसी तरह का बुग़्ज़ नहीं रखना है भाई। भाई, हजरत बोझ अली, फिल्ला क्यों नहीं रखा जा सकता, हमें आप बताइए तो। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बिल्कुल आम जब तौर पे बता नबी दें। ये कह अच्छा, रहे एक हैं, और जब बात नबी ये ये कह रहे कि हैं, इस सुनिए एक हदीस मिनट में मेरी आप बात, तखसीस अच्छा कर मेरी रहे बात सुनिए। हैं। अगर हम इस नबी, हदीस में तखसीस करें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं बोझ नहीं, सुनिए मुनाफिक सुनिए रखेगा, सुनिए, इस हदीस में तखसीस करके हम ये कहें, तखसीस नहीं बल्कि कैद लगा करके ये कहें कि यहाँ पर बुग़्ज़ से मुराद बुग़्ज़ जो है यानी अल्लाह जो है ज़ाती तौर पर बुग़्ज़ रखना है, ना कि जो है क्या नाम है अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना, चूँकि दूसरी तो दोनों हदीसों में तत्बीक बिल्कुल सही हो जाती है। और सुनिए उससे सुनिए पहले सुनिए उससे सुनिए पहले सुनिए ठीक है, सुनिए, तो हासिल ये है जब कि हम जब तखसीस करेंगे। अल्लाह के रसूल ये बात कह देते हैं कि ये हक पे रहेगा, ये हक से नहीं हटेगा, जी, है ना, जी, तो किस फिर चीज़ में? आप इसको, तमाम तमाम अपने अफ़आल व जो है अमाल में, बिल्कुल बिल्कुल, तो तमाम फिर अपने आप अफ़आल व अमाल में, बिल्कुल बिल्कुल तमाम अपने अफ़ाल या और अमाल सिर्फ जो में, है क्या नाम है उसमें, क्या नाम है क़ज़ाया के अंदर, अरे हर जंगों के चीज में, अंदर, हर चीज में, हर हर चीज में, हर चीज़ में। चीज में। तो जो हाँ, है कि आप हादियम समझ महदिया का लीजिएगा। है, जी, अल्लाह के रसूल ने उनको हादियम महदिया का है। जो जी, आप लोग माविया को सेट करते थे वो दरअसल हजरत अली के लिए है, सही जी, रिवायात में, ठीक जी, है। जी। तो वो तो उनको हादियम महदी लो, कहा है, अब्दुल कबीर भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अब हम हाँ, समझ गए आपकी बात। तो तो खुलासा ये है जब जब तो उसमें हजरत अली को अल्लाह के रसूल ने उनकी जी, जमानत जी, ले जी, ली है, तो जी, आप जी। ये चीज का वहाँ पे इम्कान ही मौजूद नहीं है कि फिल्ला उनसे कोई रखेगा, हाँ, तो यानी आप है ना। मासूम अनिल ख़ता मानते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो है क्या नाम है। अरे उनकी जमानत ली है ना भाई नबी हाँ, ने। तो हम वो नहीं कह रहे, हम कह रहे किसी भी वजह से आप मानते हैं, कोई ना कोई हम्म। दलील तो होगी आपके पास, वो तो हम तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके वहाँ मासूम अनिल ख़ता हैं इन रिवायात की मासूम बुनियाद अनिल पर। खता, देखिए मासूम अनिल खता तो अम्बिया भी नहीं, खता तो अम्बिया से भी हुई है भाई, नहीं, खता तो अम्बिया से भी हुई है, जी, ठीक है। मासूम जो है वो गुनाह से होता है, ठीक है। जी। खता खता अलग चीज है, तो गुनाह अलग ख़ता चीज है, इज्तिहादी ठीक हो है। सकती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह हाँ, तआला अन्हु से, क्या, ख़ता इज्तिहादी मुमकिन है, नहीं है? हाँ बिल्कुल मुमकिन है, ठीक हाँ, है तो ना। मुमकिन है, तो बुग़्ज़ फिल्लाह भी खता, उनसे मुमकिन है, नहीं मुमकिन है? खता एक अलग चीज है, बुग़्ज़ और ना अलग चीज है, गुनाह अलग चीज है। मतलब अगर हम ये फर्ज कर हजरत लें कि अली हज़रत अली रज़ी देखिए, अल्लाह तआला अन्हु से अगर कोई गुनाह नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सरज़द हुआ है, तो हाँ, उस तो कोई सूरत बुग़्ज़ में कैसे रखेगा उस बुनियाद पे, बताइए। तो नहीं क्या रखेगा। गुनाह की बुनियाद पे किसी शख्स से बुग़्ज़ रखा जाएगा? नहीं, ये गुनाह तो की वैसे ही हैसियत हदीस से, की बुनियाद, ये तो गुनाह वैसे की ही हैसियत हदीस से। की बुनियाद पर खिलाफ, हदीस हाँ, के खिलाफ है। नहीं तो ये तो वही है वैसे ही ना, नबी तालीम के खिलाफ है कि गुनाह की बुनियाद पर आप किसी इंसान से वो रख रहे हो। इंसान का मतलब है कि गुनाह की हैसियत से, उसकी पूरी ज़ात से गु- नहीं। तो गुनाह कैसा होगा हजरत अली से? पर्सनल गुनाह होगा ना, कोई मान लीजिए क्या किया होगा हजरत अली ने, आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये हदीस वाब ग़ज़लिल्लाही में आपने तख़सीस की, इतनी बात तो मान ली ना आपने? मैंने तो कहा है कि हुजूर ने जब हाँ, जमानत ली है उनकी, हाँ, हाँ, ठीक मासूम है, नहीं सही है, है। मासूम नहीं है, अब मतलब हाँ, ये है ठीक कि है, हाँ सही, ठीक है कुछ चलिए कोई गुनाह हो बात नहीं, सकते कोई हैं, बात नहीं, कोई बात किसी नहीं, से भी हो चलिए सकता है। असल पॉइंट पे अपने आ जाते हैं, कोई मसला नहीं, आप मासूम अनिल ख़ता पर जो है थोड़ा-सा वज़ाहत नहीं दे रहे हैं। हम तो सिर्फ इतनी बात बात कह क्लियर है रहे हैं। भाई, मासूम अनिल खता तो अंबिया भी नहीं है, जी, अंबिया से भी ठीक खता हुई है, है। चलिए, चलिए वो ठीक है। बात इस्मत अंबिया में भी बाद में बात होगी। हमें एक बात बता दीजिए सिर्फ़, ये जो ला युग़िज़ु अलिय्यन इल्ला मुनाफ़िक़ से जो आपने तख़सीस की है ना? तो ये हदीस मुतारिज़ हुई नहीं हुई? कहाँ मुतारिज़ हुई भाई? अभी आपने तो कहा था कि हदीस में तारुज़ है, तख़सीस की तख़सीस बगैर तारुज़ के कैसे हो गई? मतलब यानी मैं आप, अव्वलन सूरतन तारुज़ हुआ है तभी तो आपने तख़सीस की है।
ارے میں نے کہا بھائی، میں نے یہ کہا کہ حدیث الگ الگ زمانے میں پیش آئی ہیں ہمارے اور نبی علیہ حضور نے السلام کے زمانے کے بعد میں وہ جو ہے کیا نام ہے مجلس واحدہ حکمی کے درجے میں ہو گئی. ارے کہاں سے حکمی کے، ارے میرے بھائی اللہ کے رسول نے آپ نے تخصیص کی نہیں کی یہ ہے احادیث نا, تو بہت تخصیص بعد میں کی ہے جمع نہیں, ہوئی ہیں. آپ جس تخصیص زمانے کی ہے کی نہیں, بات کر رہے ہو وہاں کچھ نہیں ہے ایسا، سمجھ رہے ہو؟ تخصیص یہ کی ہے حدیثیں نہیں. بعد میں جمع ہوئی ہیں. اللہ کے آپ اور میں بندے بیٹھ کر بھائی کے ان پہ بحث تخصیص کر کی آپ سکتے نے ہیں کہ کی ایک مجلس کے حکم میں ہو گئی، آپ کے اور میرے لیے ایک مجلس کے حکم میں ہو گئی. ہاں حضرت تو علی کے لیے تھوڑی ہو گئی ہے، حساب سے تو حضرت بات علی کریں کے گے لیے، اللہ کے بندے. حضرت علی کے لیے نہیں ہوئی ہے، معاویہ ہاں کے تو لیے اب نہیں ہمیں ہوئی یہ ہے. بتائیے کہ اس حدیث میں تخصیص ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کچھ نہیں ہوئی. حضرت علی کے تعلق سے جب حضور نے یہ بات فرما دی تھی، بھائی حضرت ابھی تو علی آپ کے کہہ رہے تعلق تھے اس میں سنیے، تخصیص کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, کیا کہہ رہے ہیں آپ تخصیص نہیں کی؟ کون سی بات صحیح ہے آپ کی؟ تخصیص مطلب اس معنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ضمانت لے لی تخصیص تھی. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، تخصیص ہوئی نہیں ہوئی وابغض للہ میں؟ اب غزل اللہ میں کیا کس چیز کی تخصیص کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے کے تعلق سے, بغض فی اللہ رکھنے کے تعلق سے. ارے بغض فی اللہ بھائی، حضرت علی سے بغض فی اللہ ہوگا کیوں؟ میرے کو یہی نہیں ہوگا نا, تو وہی کہنا نہیں ہوگا، بالکل 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 نہیں ہوگا. کی آپ نے نہیں کی بالکل تخصیص کی, تو اسی کو کہنا. اور آپ حدیث کو اس طرح سے کہیں نہیں سمجھا جاتا. یہ دنیا کا کوئی اصول حدیث کو سمجھنے کا نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کو اس طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث دو زمانوں کی حدیث، دو موقع کی حدیث جو ہے وہ ایک کتاب میں آپ کے اور میرے لیے موجود ہے. معاویہ کے لیے موجود نہیں تھی، حضرت علی کے لیے چیز موجود نہیں تھی. سمجھو اس بات کو بھائی. بھائی ایک بات بتائیے ہمیں عبد الکبیر بھائی, ہم تو صرف اتنی بات پوچھ رہے ہیں, آپ تو پورا فلسفہ بتا رہے ہیں حدیث, اصول حدیث کا. ہم تو صرف وہی سمجھنا پڑے گا آپ کو پورا. جی ہاں وہی پورا سمجھے گا انشاءاللہ. ہاں تبھی آپ کے سمجھ میں آئے گی بات. جی اتنی بات بتائیے کہ تخصیص آپ ایک مرتبہ کہنا کہ ہوئی, ایک مرتبہ کہنا نہیں ہوئی, تو آپ ایک مرتبہ سیدھی بات کہہ دیجیے بغیر کسی اس کے. بھائی آپ کبھی جو ہے نا وہ حدیث جو حضرت علی کے تعلق سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا آپ اس والی کو بیان کر دیتے ہیں الحب فی اللہ والحب فی اللہ. تو وہ جو ہے نا اسی وقت وہ کنفیوژن کہ دونوں میں کوئی تعارض سوری ہے نہیں. کوئی تعارض نہیں ہے بھائی، کوئی تعارض نہیں ہے. تعارض کیا کرے گا؟ نہیں ہے تو تعارض نہیں ہے تو تخصیص کس بنیاد پر آپ نے کی؟ تخصیص کس چیز کی میں تخصیص کر رہا ہوں یہ تو بتا دو مجھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی. اور پھر اگر سوال سن لیجیے کیا ہے کہ جب اس میں تعارض سوری ہے تو آپ ہمیں بتا دیجیے کہ یہ قطعی الدلالہ کیسے ہے. بس اتنا سوال ہے ہمارا. ارے میرے بھائی کوئی تعارض نہیں ہے کسی بھی طریقے، کوئی تعارض نہیں ہے. صاف حدیثیں ہیں, ایسی بات نہیں. آپ کے معیار کے مطابق بالکل صاف حدیثیں ہیں. تو اب ہمیں یہ بتا دیجیے کہ یہ حدیث حضرت ابھی تو اس پر آیا ہے کہ مطلقاً جو ہے بغض رکھنے والا منافق ہے. پھر یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منافق ہونے پر قطعی الدلالہ ہے جیسا آپ نے کہا, تو اسے آپ ثابت کیجیے گا. تو ہمیں اتنی بات بتا دیجیے کہ یہ حدیث قطعی الدلالہ کیسے ہے جبکہ اس کے معارض ایک سری حدیث ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی یہ چیز بیان کی تھی. سنیے آپ جو ہے نا میرے کو یہ یار آپ لوگوں کا بڑا مسئلہ لگتا ہے. میں نے آلریڈی آپ کو کلیئر واضح طور پہ بولا تھا کہ کوئی ایک ایبسلیوٹ حدیث نہیں ہے کہ میں اس کو نکال کر کے آپ کو دے دوں کہ یہ لیجیے بھیا معاویہ کے نفاق کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو آلریڈی بولا تھا کہ معاویہ کا نفاق بے شمار احادیث سے اور روایات سے کلیکٹیولی اس کا جو ہے نا نتیجہ آتا ہے. نتیجہ وہ آپ استدلال کرتے ہیں نا, استدلال کرتے ہیں تو وہ قطعی الدلالہ ہے اس پر. جیسے آپ نے اس حدیث سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے منافق ہونے پر استدلال کیا, وہ استدلال اس پر موقوف ہے. بے شمار دلائل میں سے اللہ تعالیٰ عنہ کے سے مطلقاً بغض رکھنا یہ نفاق ہے. تو اسی بے شمار دلائل میں سے یہ ایک ہے مولانا. بے شمار سنیے ارے مولوی صاحب بات تو سنیے آپ میری. بے شمار میں نے یہ کہا تھا کہ روایات میں سے یہ ایک ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی ایک ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ کوئی ایک ایبسلیوٹ مطلب ایک روایت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک چیز نکال کر کے دے دوں اور کہہ دوں کہ بھیا یہ لیجیے نفاق کی بات, اور پھر آپ جو ہے نا اس کو لے کر کے کہتے ہیں کہ ہاں بھیا یہ کمزور ہے, یہ ضعیف ہے, یہ مطلب آپ بتا رہے ہیں وہ چلنا ہے. ابھی تک ہم نے اپنا مطلب اور یہاں پر فی ذات جو ہے وہ واقع کی خبر دی جا رہی ہے یہاں پہ بغض فی اللہ کا بغض فی اللہ بھی ہے. آپ حضرت علی سے بغض فی اللہ رکھ ہی نہیں سکتے بھائی. حضرت علی کے اندر ایسے اعمال ہی نہیں ہے, یعنی حضرت علی کے اندر ایسے اعمال ہیں ہی نہیں جس سے آپ ان سے بغض فی اللہ رکھ سکیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کی ضمانت لی ہوئی ہے. آپ غزل اللہ کے اندر آپ نے حضرت علی کے تعلق سے ہے ہی نہیں حدیث, وہاں موجود ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے آپ نکال کر کے لائیں؟ ہاں یہ ایسے ہی نکال کے لائیں جیسے لا یبغض علیٰ الا منافق. آپ حضرت معاویہ کو کیسے نکال کے لائیں؟ کس سے؟ معاویہ کی سیرت ڈال ہے بھائی.
हाँ माविया की सीरत दाल है हजरत इसमें। मुआविया रजी अल्लाह तआला की सीरत दाल है, तो इस हदीस से कैसे आया? इंतबाह किया ना आपने, इससे उमूम बिल्कुल। से या मुतलक से इस्तिदलाल किया ना आपने। अरे मेरे भाई ये तो ये हदीस ही इसीलिए ये, यानी नहीं, हजरत अली से ये जो भी मुतलक से मुनाफे इस्तिदलाल जो किया ना भी कि बुग़्ज़ जो भी रखेगा, मुतलकन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखेगा, खा बुग़्ज़ फिल्लाह रखे, वो मुनाफिक है। और हजरत बिल्कुल वो अमीर कैसा भी मुआविया हो रजी वो, अल्लाह अन्हु ने बुग़्ज़ रखा इसलिए मुनाफिक है, ये आपका बिल्कुल इस्तिदलाल है, बिल्कुल हदीस में नहीं है। बिल्कुल तो इस बिल्कुल पर हम बिल्कुल। आपसे पूछ रहे हैं कि ये हदीस हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पे कतईउद दलाला है, ठीक आप कह रहे हैं, जबकि इसके मुआरिज एक हदीस है जो इसके इस माने को मुराद लेने के लिए माने है कि बुग़्ज़ कहीं फिल्लाह नहीं, रखने वाला मुनाफिक नहीं होता, बुग़्ज़ फिल्लाह है ही नहीं, हजरत कामिल अली ईमान उससे वाला होगा। मुस्तस्ना है भाई। इसका जवाब नहीं हुआ हजरत इब्न कबीर हजरत भाई। अली उससे मुस्तस्ना है यार, आप समझ ही नहीं तो रहे हो बात को। मुस्तस्ना जब है तो मैं तखसीस कह क्यों रहा नहीं की हूँ, मेरे भाई? तखसीस जब करेंगे जब तारुज होगा, जब तारुज हो गया दो हदीसों में, दो सही हदीसों में, तो कतईउद दलाला कैसे हो गई वो हदीस? मैंने कब कहा कि एक रिवायत कतईउद दलाला का? रिवायत तो कतईउद दलाला होती ही नहीं है, रिवायत तो ज़न्नी है सारी। सारी ये तो मैं ज़न्नी आपको पहले ही बोल चुका हूँ भाई। ठीक है, सारी रिवायत तो ज़न्नी। कभी तो भी आप ये कतईउद बताइए, दलाला तो अभी होती तो नहीं आप है। ये कह रहे थे कि कतईउद सुबूत भी हैं और सारी रिवायात कतईउद दलाला भी हैं। मैंने तो यही तो कहा कि कलेक्टिवली, यानी उसका नतीजा ये निकलता है कि वो कतई है, ठीक है, चलिए कोई एक रिवायत नहीं है। नहीं, और ये थोड़ा सा कटेउली जरा बताइए क्या है, ये थोड़ा कलेक्टिविटी समझ नहीं पाया हम, ये क्या इसका नहीं मतलब ये है, देखिए मैं आपको बहुत पहले शुरू ही में बहुत सादा जबान नहीं, में हम इस चीज समझ को रहे हैं, बयान कर चुका था हम इतनी बात कि समझ रहे हैं, आप जो हाँ, कहना चाह रहे हैं ना कि मजमूई रिवायात से एक नतीजा निकलता है बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, किसी तो वो एक रिवायत मजमूई को रिवायात एब्सोल्युटली हम तवातुर ये की नहीं हद कह तक सकते। हैं, एक तो ये दावा साबित करना पड़ेगा आपको, दूसरे कतईउद दलाला हैं, तो कतईउद दलाला तो जब पहुंचेंगी मजमूई एतबार से, जबकि एक एक फर्द देखिए कम सुनिए से कम उस सुनिए पर दलालत करे। सुनिए सुनिए यहाँ सुनिए, पर जो मैंने आप मैंने इस्तेदलाल कर रहे मैंने हैं पहली हदीस से, वही मैंने गलत है। मैंने आपको पहली बार में ही ये बात बोली थी कि कोई एब्सोल्यूट कोई एक रिवायत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये बोली थी मैंने तो आपको चलिए एक हम कि इस्तेदलाल माविया के आपके ताल्लुक मुआरिज से, सुनिए आपके मैंने आपको मुआरिज दूसरी ये बयान बोली कर थी रहे हैं, ठीक है। कि माविया के ताल्लुक से जो कुछ हम तक पहुंचा है, जितना भी हाँ जैसा भी जिसमें जी जो कुछ सही है, जी उसका नतीजा ये निकलता है कि माविया कम से कम मोमिन नहीं था, ठीक जी है। जी उसका नतीजा ये निकलता है जो कुछ हमारे पास सही पहुंचा है। जी मैंने ऑलरेडी शुरू ही में आपसे ये बात कह दी थी कि मुझे नहीं पता भाई वो मुतावातिर है कि नहीं है, मुहद्दिसीन के यहाँ वो मशहूर है कि नहीं है। तो फिर तो कतई जन्नी उसमें होने से का जो फैसला कुछ कैसे सही करेंगे है, आप? जी उसमें सही, से जो कुछ सही है, सही ठीक है ना, मुतवातिर जो भी कुछ होता है, मशहूर भी होता है, आज भी होता है, बिल्कुल आपने बिल्कुल माना है कि वो वो होगा। आबाद है, हाँ मतलब मुतवातिर मैंने भी है। यही कहा कि चलिए उसमें मेरी जो बात कुछ सुनिए मुतावातिर अब्दुल कबीर होगा, भाई, मशहूर होगा, ये हम बाद में चेक कर लेंगे, नहीं अब्दुल है ना। कबीर भाई नहीं, बाद में बगैर उसके तो इस्तिदलाल मुकम्मल नहीं है। अब एक बात, एक हमारा इस्तिदलाल सुनिए, ठीक है, आपके मुआरजे में है ये कि आपने कहा कि इतनी अहादीस कसरत से हैं, इतने नुसूस कसरत से हैं कि बिल्कुल कतईउद सुबूत और कतईउद दलाला हैं, ठीक है, लेकिन इनफिरादी तौर पर कतईउद दलाला नहीं है, इज्तिमाई तौर पर कतईउद दलाला है, ठीक है, यही मौक़िफ़ है आपका। हम देखिए बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हाँ हाँ सही है और ना बिल्कुल सही बोल मुजादले रहे वाली बात कर रहे हैं, हैं। हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब अगर हम ये बात कहें कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, उनकी सीरत को सामने रखते हुए कि उनके ताल्लुक से ईमान वाला होने के और उनके जो है क्या नाम है सहाबा के लिए जो फ़ज़ाइल हैं, उस पर बिल्कुल आपके मेयार के मुताबिक कतई सुबुत कतई दलाला रिवायत और नसूस हैं, तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, ठीक नहीं है, है, एक भी नहीं है। ज़रा वो दीजिएगा कुरान पाक में, वो है अरे सूरह हदीद की जो आयत है, एक भी नहीं है भाई, माविया के लिए कुछ नहीं है यार। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। मेरी बात सुन लीजिएगा, हाँ हाँ वादा अल्लाह ने वादा किया, नस है, पीछे से पढ़िए, पीछे से शुरू से पढ़िए, आयत शुरू से पढ़िए। ना एक मिनट पढ़ रहे हैं, वो जहन में नहीं आ रही एकदम से। अरे 1 सेकंड लगेगा, मैं निकाल के पढ़ूं। जी ये पूरा उठाना जी, 1 मिनट बता रहे, पढ़ो पढ़िए पढ़िए पढ़िए। माविया ना मुहाजिरीन में है, ना अंसार में है, ना इंसाफ करने वालों में से है, ना जिहाद करने वालों में से है। जी, तो कुल्लन वादल्लाह में माविया नहीं है कहीं भी, दूर दूर तक। एक सेकंड हो जाएगी मेरे भाई, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। एकदम से वो आयत निकल गई जहन से। अरे वो कबल अल-फतह बादल फतह वाली बात है, उसमें वहाँ पे शर्त है भाई। जी जी जी, अल्लाह ताला ने वहाँ सिफात बयान की हैं कि वो लोगों के लिए वादा है। आपको मालूम है कि आपका वहाँ पर इस्तिदलाल मौजूद है, ऐसी बात नहीं, देखिए हाँ ये है, पढ़िए। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्हि व मन अनफक़, बिल्कुल। मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू
वकुल्लम बिल्कुल वअदल्लाहुल हुस्ना। बिल्कुल, माविया ने ना इंसाफ किया है ना क़िताल किया। माविया तो भिखारी था, फकीर था, कल्लाश था। जी सही मुस्लिम में रिवायत है माविया के पास 1 रुपया नहीं था। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटे दिए इसको तालीफ कल्ब के लिए, जी। तो है ना। तो यही- जब जी जब जब वो एक सहाबिया आई थी कि अल्लाह के रसूल मेरे पास रिश्ता आ रहा है माविया का, उससे शादी कर लूँ। जी अल्लाह के रसूल ने कहा कि उससे शादी करके क्या करेगी, कल्लाश है वो तो। जी इन्नहु सुअलूक कहा था अल्लाह के रसूल ने उसको कि वो फकीरता है, कुछ नहीं है उसके पास, क्या करेगी, जी। ना नफका नहीं उठा सकता वो तेरा। तो तो कभी माविया कहाँ से हज़रत इंसाफ अमीर करेगा। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना सदका नहीं किया है कि जिससे वो अल्लज़ीना अनफ़क़ू में एक मरतबा खर्च करके भी हो जाए। ना 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 भाई, है ही नहीं। माविया इस आयत से पहले तक माविया का कोई मसला ही नहीं है। हाँ। इंसाफ मतलब नहीं, इंसाफ तो हम माविया बता पे रहे उल्टा हैं कि किया गया है। इसमें सुनिए, उलाइक आज़म दरजतन माविया पे, मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद वक़ातलू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुलह के बाद या फतेह मक्का के बाद हाँ नहीं किया नहीं किया इन नहीं लोगों किया ने नहीं भी किया खर्च किया, तो एक मरतबा नहीं भी किया, अगर खर्च करेगा तो इसका मिज़ाक हो जाएगा, और एक मरतबा भी क़िताल करेगा तो मिज़ाक हो जाएगा। हाँ नहीं किया भाई, माविया से कहीं इंसाफ कुछ नहीं है किया। साबित। ठीक है, चलिए ये एक नया दावा में इसे हम परखेंगे। ठीक है, हाँ, परख लीजिएगा, क़िताल भी नहीं है माविया की वकुल्लन कहीं भी। वअदल्लाहुल हुस्ना, और हर एक से अल्लाह ने हुस्ना का वादा वादा है, किया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हाँ इसमें जो बिल्कुल है है भाई, नेक आप लोगों के मुआविया लिए रज़ी अल्लाह बिल्कुल है। तआला अन्हु को नहीं मानते हैं, तो ये इस पर जो है क्या नाम है मौकूफ है कि इन्फाक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिल्कुल कोई नहीं किया। इंसाफ नहीं है, कोई क़िताल नहीं है। माविया को बल्कि पैसे दिए गए थे, ऊँट दिए गए थे, ठीक है, जी तालीफ कल्ब के लिए 100 जी ऊँट दिए थे। जी ये देख लीजिएगा, सबने लिखा है, इब्न तैमिया तक ने लिखा है, ठीक है। जी जिस अहले सुन्नत का जो है ना मुकदमा लड़ते रहे शियों के खिलाफ, जी उन्होंने भी लिखा है कि भाई तालीफ कल्ब के लिए 100 ऊँट दिए थे उसको। जी। तो यहाँ पर हाँ, जो है कि अल्लज़ीना अनफ़क़ू और क़ातलू को आप जो है वो शर्त कातलू में तो मानते है हैं, ही नहीं, कातलू में है ही नहीं, वो शर्त माविया है मानते ही हैं ना, नहीं। शर्त मानते बिल्कुल हैं। भाई, ये सिफात उन्हीं के लिए अल्लाह ताला कह रहा है जुनैद अकरम भाई, जुनैद अकरम भाई, जी जी उन्हीं के लिए अल्लाह जुनैद ताला कह अकरम रहा है। भाई, जी। नासिर भाई एक मिनट जुनैद अकरम भाई, जी नासिर भाई इसका ठीक है। यहाँ पे डंडे मार रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये। नासिर भाई बस मैं आपको मैं आपको बता बताएं। रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पे जो डंडे मार रहे हैं ना, कातलो, ये जो ऊँट देने का वाक़या बयान कर रहा है ना, 600 ऊँट दिए थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को और सैयदना यजीद इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को। और ये जो आपने दिए थे, ये ऊँट काज़ी अयाज़ ने शिफा में नकल किया गया इसको, ये जंग हुनैन में दिए थे। जंग हुनैन में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई दोनों शरीक हुए थे। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, वही तो दिए थे, वही तो मैं कह रहा हूँ। कातिल में शरीक नहीं है, ये जो कह रहे कातिल में शरीक नहीं, जंग हुनैन में शरीक थे। उससे पहले तो सुलूक है ना माविया, उससे पहले तो सुलूक है। उसी जगह में वो फतेह मक्का के बाद जब भी खर्च करेंगे वो बादल फतेह ही होगा। बादल होगा में 100-2 साल के कद में बादल फतह अपनी जिंदगी में कभी भी खर्च करेगा तो वो बादल फतह में शुमार किया जाएगा। नासिर भाई दूसरी बात अब्दुल कदीर नदवी जो कह रहे हैं कि ये कातलों में शायद शरीक नहीं है, जिस जंग में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 600 ऊँट दिए थे, वही जंग उसी जंग में खुद शरीक थे सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। भैया माविया कहीं जंग में कोई शरीक नहीं है, कहीं क़िताल नहीं किया माविया ने। माविया अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, एक कहीं रिवायत से लाके दिखा दीजिए कि माविया ने कहीं क़िताल किया, एक कहीं रिवायत से लाके दिखा दीजिए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में मौजूद है। हाँ दिखाइए, माविया का क़िताल दिखाइए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में मौजूद है ये। अरे तो भाई कहाँ बताइए, कौन से नंबर की रिवायत है, देखूं मैं। अच्छा रुकिए, मैं आपको रिवायत दिखाता हूँ मुस्लिम शरीफ। दिखाइए कि माविया का कहाँ क़िताल है, माविया के कहाँ किसको कत्ल किया है, माविया ने किससे क़िताल किया है, कहीं नहीं है भाई। तो ये लोग अभी कहूँगा तो आपको लगेगा कि तबूक में लोग शामिल थे और तबूक में हुजूर को कत्ल करने की साजिश रची गई थी, ठीक है। और हुजूर ने वहाँ पे कहा था कि मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं। भाई इस हवाला, ये इस रिवायत का हवाला, किस रिवायत का? ये जो आप पेश कर रहे हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, भेज दूंगा। फी असहाबी इस्नता अशरा मुनाफिकन समानियत मिनहुम हवाला मैं रिवायत पढ़ के सुना रहा हूँ, आप देख लीजिए रिवायत। नहीं आप मोतबत नहीं ना हमारे नजदीक। अरे मेरे भाई तो इबारत आप डालेंगे ना गूगल पे, वो रिवायत आ जाएगी, इसलिए मैं अरबी पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। अच्छा तो हमें गूगल करना पड़ेगा? नहीं हवाला तो बताइए, कहीं पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। एक सेकंड रुकिए, दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं, इजमाली हवाला दे दीजिए, इसमें बड़ा इशू नहीं है, 1 मिनट में दे देता हूँ आपको। हाँ। और नासिर भाई आपकी आवाज़ ज़रा साफ नहीं आ रही है, तो खैर नासिर भाई देखिए, अब तक अब्दुल कबीर भाई के ये दावे हुए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निफाक पर जो अहादीस हैं क़तई सबूत हैं, क़तई दलाला हैं, ठीक है, इज्तिमाई तौर पर। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ भी साबित नहीं है। और ये जो आयत है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना,
یہ جو ہے اس میں حضرت امیر معاویہ جب داخل ہوں گے جب وہ انفاق اور قتال کریں، ٹھیک، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں کبھی صدقہ نہیں کیا اور کبھی بھی قتال نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ بھی انفاق اور قتال کو ثابت کر دیں تو پھر حضرت امیر معاویہ وکلًا وعد اللہ الحسنی میں داخل ہوں گے، اور آیت کے تحت داخل ہو کر کے پھر تمام جو دوسری روایات ہوں گی وہ سب کے متعارض ہوں گے۔ جب متعارض ہوگی یہ آیت دوسری روایات بات یہ ہے صحیح مسلم کی روایت 2779، ٹھیک ہے، ہی غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 2779 ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں اور ان میں سے جو ہے نا وہ 8 جو ہوں گے وہ دوبیلا پھوڑا سے مریں گے، ایک بیماری یعنی کہ کہیں ناسور سے مریں گے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ معاف کرے جناب معاویہ کا انتقال جو ہوا تھا نا وہ ناسور سے ہی ہوا تھا۔ جناب نے کہی کہ ایمان ختم ہو جائے تو جناب کہہ رہے نا ایسے شخص کو آپ جناب کیوں اپنے عقیدے کے مطابق؟ ہاں ان کی جو تھی نا ان کے پیٹھ پہ جو ناسور نکلا تھا اسی سے وہ بھائی سوال یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نفاق متواتر ہے، وہ منافق تھے، تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں خلافت اسلامیہ کیوں دی؟ کچھ نہیں، بیعت نہیں ہے کہیں بھی، صلح ہے، صلح تو اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ ان کے حوالے کر دی، صلح تو اللہ کے رسول نے حدیبیہ میں کی ہے بھائی، مسلمانوں کو حوالے کر دیا، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ایک مسلمان، ایک مظلوم مسلمان کو ان کے حوالے کر دیا، ٹھیک رکھیے۔ وہ تو شرط رکھی تھی، وہ تو کفار تھے، وہ تو شرطوں پہ ہی حضرت حسن نے کی۔ ارے عبدالکبیر بھائی بات پوری سنے پہلے، وہ کفار اور مسلمان کے درمیان صلح تھی، یہاں پر تو یہاں کئی بھی صراحت نے کفار اور مسلمان کے درمیان صلح۔ دوسری بات بات پوری ہو جانے دیجیے میرے خیال سے۔ تو بات یہ ہے کہ میں ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتا ہوں، کبھی بھی یہاں پیشنٹ آ جاتے ہیں تو مجھے جانا پڑتا ہے، اس لیے جلدی جو بھی بات ہے وہ کر لیں۔ نہیں ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں، سامنے آ گیا ہے، اب اس کو پرکھنے کی دیر ہے۔ موقف بالکل کلیئر ہے، واضح، میں بہت دنوں سے لکھ رہا ہوں بھائی، لکھ چکا ہوں سب، یہ بہت پہلے سے لکھ چکا ہوں۔ معاویہ کا نفاق جو ہے وہ بالکل واضح ہوا، اور وہ دوبیلا پھوڑے سے جب مرا تو بالکل آپ بار بار بیان کر رہے ہیں نا، ابھی سے پرکھنے کا ٹائم ہے، جو آپ نے جو ہے دلیل دی ہے اسے پرکھنے کا ٹائم ہے، پرکھ لیجیے بھائی، واضح ہے بالکل سب چیزیں آپ کے نزدیک واضح ہوگا، سمجھے نا۔ چلیے ناصر بھائی بات کیجیے۔ ہاں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بغض تھا، اس کا کوئی ایک ثبوت پیش کیا جائے۔ حضرت معاویہ کا کیا تھا؟ بغض تھا، بغض تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس کا کوئی ایک ثبوت پیش کیا جائے۔ اچھا، بنا بغض کے وہ پیار محبت کرنے آئے تھے، اس کو چومنے چاٹنے آئے تھے؟ آپ ثبوت پیش کریں۔ ہاں ثبوت ہی ہے بھائی، پوری سیرت اس کی ثبوت ہے۔ ہاں بتائیے، کوئی ایک ثبوت پیش کریں، ہم کی پوری چیز کو بغض کہتے ہیں، آپ اس چیز کو پھر ثابت کر قرآن اور حدیث سے کہ یہ چیز بغض ہے۔ بغض دیکھیے، حضرت علی سے انہوں نے جنگیں کی ہیں، حضرت علی کو گالیاں دلوائی ہیں، ممبروں سے لعنت کی ہے۔ ایک منٹ جنگیں کی ہیں، اس کا کوئی ایک مطلب یہ جنگ کرنا بغض میں داخل ہے، قرآن میں یا حدیث میں اس کا ثبوت دکھا دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور بتائیے آپ کے اس کا ثبوت دکھا دیجیے پہلے آپ۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ اس کو ثبوت دے دیجیے، اس کے بعد میں پوری دنیا بھائی، یہ تو پوری دنیا کی واضح ہے کہ بنا قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہے یہاں پر۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے آگے اور بتائیے، آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے جس میں آپ یہ دکھا سکیں کہ کسی سے جنگ کرنا بغض ہے؟ جنگ بغض کی بنیاد پہ ہوتی ہے بھائی، بغض کی بہت سی وجہ سے جنگ ہوتی ہے، لیکن بغض کا کہنا ہے، یہ آپ کا کہنا نہیں ہے بھائی، قرآن کہتا ہے یار، قرآن کہتا ہے، تسلیم کر لیا آپ نے، خود تسلیم کر لیا الحمدللہ کہ جنگ کوئی وجہ سے ہوتی ہے، بغض بھی ایک وجہ ہے۔ بالکل اور معاویہ کے اندر بغض نہیں، وہ پہلے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغض کی وجہ سے جنگ کی، اس کا ثبوت دکھائیے۔
हम तो ये समझते हैं कि क़िसास उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क़िसास को लेकर जंग हुई है, उनके मुतालबे को लेकर जंग हुई है। कहीं कोई मुतालबा नहीं है, माविया ने कहीं कोई मुतालबा नहीं ना, माविया से कहीं मुतालबा दिखा दीजिए, आप दिखाइए माविया से कहाँ है मुतालबा, कहाँ कर रहा है माविया, बताइए। ये समझ आपने बुग़्ज़ का दावा किया है, आप माविया से कहीं दिखा दीजिए ना जो मुतालबा कर रहा था। आप हमारे सब आप ले जाएंगे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो ये बात आपको देना है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जंग हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो बुग़्ज़ की वजह से की है, आप ये पहले देखो। हाँ ठीक है दिखा देंगे, और बताइए, और दूसरा बताइए। आप फिलहाल नहीं दिखा सकते, अरे आप फिलहाल नहीं दिखा सकते, आपके पास नहीं है मेरे भाई। देखिए सुनिए, बुग़्ज़ किसको कहते हैं? नफरत करने को कहते हैं, ठीक है ना, पहली बात जी, ठीक है। हाँ। और माविया जो था हजरत अली से नफरत करता था, इसके बेशुमार वो मौजूद हैं, ठीक है। माविया खुद मौजूद है, जबान से कहता था। जंग जो थी, जंग उसको वो बुग़्ज़ की वजह से, नफरत की वजह से थी, इसका सबूत दीजिए आप। हाँ, किस तरह का सबूत चाहिए आपको, ये बताइए। आप कुरान हदीस से दिखा दीजिए। अरे भाई, हजरत अली से जो बुग़्ज़ रखेगा, जो भी, ठीक है, और हजरत अली से हम मानते हैं उसको, हम नहीं कहते। हाँ, हम मानते उसको, हम उसको गलत थोड़ा कह रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हमारे दिलों में है, अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी, और हमारी दुआ है कि इसी पर हमारी जो आप बात तमाम आप जो बात कह रहे हैं कि मोहब्बत और बुग़्ज़ का जो यार आप तय कर रहे हैं, उसको हम नहीं मानते। अरे माविया की सीरत तय करती है भाई, माविया की सीरत नहीं, वो सीरत आप पहले ये कहा, सीरत मतलब है आप बासनद रिवायत पेश करें। माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फला आदत जो है जो बुग़्ज़ है, माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फला आदत जो बुग़्ज़ है, आपने जंग को कहा कि जंग को बुग़्ज़ में शामिल किया, मैंने रिवायत बता रहा हूँ आपको, सुनिए। कुछ नहीं है भाई हमारे यहाँ, मैं आपको रिवायत सुना रहा हूँ, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ठीक है। अभी मैं उसका हवाला देता हूँ 2 मिनट में। वो रिवायत करते हैं कि मैं हज करने गया था और लोग तलबिया नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, लोग तलबिया नहीं पढ़ रहे हैं, माविया के ज़माने की बात है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई क्या हो गया है लोगों को, लोग तलबिया नहीं कर रहे, वो कहने लगे कि माँ बालू नास ला युलब्बून, है ना। तो उनको बताया गया कि यखाफून मिन मुआविया, कि लोग जो है वो मुआविया से करते हैं, ठीक है। तो हवाला देता हूँ, 2 मिनट के अंदर हवाला देता हूँ, सही तरीन रिवायत है, बिल्कुल आप तहकीक करिए, ठीक है। क़साइस अली में भी मौजूद है और ये सुनन नसई में मौजूद है। अल्लामा आपके क्या कहते हैं नाम उनका, अल्लामा सरहिंदी, नहीं, अभी नाम याद नहीं आ रहा, बता दूंगा, उनकी शरह भी मौजूद है, ठीक है। तो उसमें इब्न अब्बास अपने फुस्ताद अपने खेमे से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि लअनहुमुल्लाह कद तरकु सुन्नत मिन बुग़्ज़ अली, ठीक है। उन्होंने लानत की है माविया पर और कहा कि इन्होंने अली के नफरत जो है ना, अली के बुग़्ज़ में हज़रत के रसूल की सुन्नत को छोड़ दिया। हवाला दूं? हवाला दीजिए आप, या पहले सनद पढ़ के सुना दीजिए, पहले लाइन करिए, आप किताब में निकालिए, सनद पढ़ के सुना दीजिए एक बार मुझे। नासिर भाई आपकी आवाज़ बहुत हल्की हल्की वैसे आ रही है, फंस फंस करके, थोड़ा माइक सही दीजिए अपना। ठीक है, आप ये रिवायत देखिए जनाब, पढ़ दीजिए सनद उसकी। अरे बिल्कुल सही सनद है भाई, आप तहकीक करते रहिए, पढ़िए ना, सनद पढ़िए उसकी, आप सुबह शाम सनद तक इसकी चेक करते रहिए। बस एक बार सनद पढ़ दीजिए। ये सुनन नसई में, सुनन अल कबीर के अंदर देखिए आप, सुनन नसई में आपको मिलेगी ये हदीस। सुनन अल कबीर कौन सी किताब है? अरे मेरे भाई ये सुनन नसई है, सुनन नसई, ठीक है, किताबुल हज, सुनन नसई किताबुल हज देखिए। ये इमाम नसई की सुनन अल कबीर मैंने पहली बार सुना है, अस सुनन अल कुबरा मैंने पढ़ा है, लेकिन अस सुनन अल कबीर मैंने नहीं भाई, अस सुनन अल कबीर, ठीक है।
देखिए आप सुनन अल कबीर, सुनन आप अगर अरबी जानते तो ये मालूम हो जाता कि यही दुरुस्त नहीं है। जी अरे मेरे भाई सुनन जाके कुबरा आप होगा। देख लो, कुबरा कबीर दोनों से मौसूम होता है वो। चलिए आपको चलिए जब चलिए, कुछ कोई पता बात नहीं नहीं है, ना, चलिए आगे चलिए, मुद्दे पे सुनना रहिए, नहीं भाई। मुद्दे पे रहिए, तो चलो बात, ठीक है, हाँ चलिए। सुनिए 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 सुनिए, हदीस सुन लीजिए, जी। है ना। ये हदीस नंबर है 9521, ठीक है। हाँ तो समझ पड़े। सईद बिन जुबैर, सनद वनद आप देखते रहना भाई। सईद बिन जुबैर से, समझ पड़ सईद बिन मेरे जुबैर पास रिवायत सुनन अल करते कुबरा हैं, नहीं है। कुन्ना हदीस इंद हदीस इब्न नंबर क्या है? अब्बास हदीस नंबर क्या है? फक़ाल या सईद मा ली ला अस्माउ अन्नास ये तो युलब्बून सनद पढ़िए ना, इसके मतन तो पढ़ चुका हूँ। यखाफून मआविया फखरज इब्न अब्बास मिन फुस्तातिही फक़ाल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि वइन रग़िम अन्फु मुआविया अल्लाहुम्मा लअनहुम फ़क़द तरकु सुन्नत मिन बुग़्ज़ि अली। समझ पड़े सनद। अरे मेरे भाई जाके देख लो, रिवायत नंबर दे दिया, मुझसे सनद पढ़वाओ। पढ़ो सनद में पढ़े। नहीं सनद पढ़िए ना, रिवायत नंबर क्या है? रिवायत नंबर क्या है? मेरे पास सुनन अल कुबरा नहीं है इस वक्त, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सनद पढ़ दीजिए। मेरे भाई एक सेकंड लगेगा, आप गूगल कर लीजिए, कहीं भी झूठ नहीं होता रिवायत है। नंबर बताइए, रिवायत नंबर। कॉल चलती है तो फिर मेरे मोबाइल में नेट नहीं चलता है, इसलिए मैं गूगल भी नहीं कर रिवायत सकता। नंबर है मैं बता रहा 9521, ठीक है। जिन्हें देखना उसको सर्च करो। जी। चेक कर नहीं तो है ना। वो सनद पढ़नी चाहिए ना, इस तरह कैसे होगा? हाँ, अब ये सर्च तो करके उसके सनद देखो। जी। अब अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि नसाई हमारी वो दूसरे कमरे में, यानी हमारे हवाले जो है तो आप, वो मैं दूसरे कमरे अगर में सनद है। पढ़ भी लूंगा तो आप क्या करोगे उसमें, बताइए। मैं आपको रिवायत का वो बता देता हूँ ना, तो हम नहीं नहीं, तहकीक सनद बता देता पहले हूँ भाई। मालूम होनी चाहिए ना। मुहक्किक तो यार अब तहकीक ये के तो मेरे ऊपर। पास, ये तो मेरे पास वो नहीं है कि आपके लिए मैं आप सनद लेके बैठूंगा। मैं कोई थोड़ी, मैं हॉस्पिटल नहीं, में बगैर बैठा हूँ सनद भाई। की रिवायत कैसे मोतबर हो जाएगी भाई? आप सनद चेक करिए भाई, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको राइट अच्छा, सही बाप साबित कर बताइए, इसका दीजिए। बाप बताइए, बाप कौन सा है किताबु मनासिकिल हज में? बाप कौन सा है? अरे भाई जब मैंने अरे आपको बता ढूंढने की दिया, कैसे इतना अल्लाह के नहीं बंदे, है। मेरे पास सुराज सामने खुला हुआ है सुनने नसई है, और इस पे अल्लामा शेख अलबानी की तहकीक मौजूद है। सलमानी की तहकीक छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी कह देते हैं। आप ये बताइए अपना बाप कौन सा है? देर हो रही है ना, बाप बताइए कौन सा है ये किताबों बाबु तलबिया यौम अरफा, यौम अरफा, सॉरी, बाबु तलबिया यौम अरफा। और क्या लिख रहा है इसमें, हिंदी में थोड़ा पढ़ती है, कोई छोटा मसला नहीं है, नीचे। वो अरबी लहजा जरूरी नहीं है हमारे वहाँ। नहीं मेरे को इसमें दिख नहीं रहा है सही से भाई, बहुत छोटा सा स्कैन है तो उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, स्कैन पढ़ रहे हैं आप, ये मसला है। गूगल से निकाल के देख रहा हूँ भाई, मेरे पास किताबें लेके थोड़ी बैठा हूँ मैं यहाँ पे। नहीं तो ये सुराज वगैरह है ना मोतबर, नहीं चलिए कोई बात नहीं है, वो तो आपका अपना वो है। अब ये बाप नंबर कितना है? मेरे भाई जब मैं आपको हर चीज एकदम खोल के बता रहा हूँ, रिवायत अपनी जबान से मैंने तो बिना देखे पढ़ के सुनाई थी मेरे भाई। नहीं तुराज खुली है ना, तुराज खुली है ना तुम्हारे पास, सुनन कुबरा सर्च करो और सुनन कुबरा में जाकर रिवायत के चंद अल्फाज एक दो टुकड़ा डाल दो, आ जाएगा। बस बिल्कुल सही बात है। बस वो डाल, लेकिन मसला एक तो नेट का है, समझे ना, और दूसरा ये है कि यही करो, बस इतना डाल दो कत्तारा कुछ सुन्नता मिन बुग़्ज़ि अली, बस अपने आप आ जाएगी रिवायत निकल करके। डाल दें ये पहला जो कत्तरकू सुन्नता मिन बुग़्ज़ि अली ना, एक मिनट असल में इसमें एक अपने आप आ जाएगी। जी, इसमें कहीं पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, अल्लाह से डरो भाई। अब नहीं दिखा रहा है तो उसको ढूंढो। मैं आप तो मत लगा रहे हैं भाई, अल्लाह के बंदे। वही कह रहा हूँ कि ढूंढिए आप, खोजिए, मिलेगी कैसे नहीं यार। मैंने उसको 50 ये है कि रिवायत आप पढ़ रहे हैं तो नहीं, ला किताब बिहादल उन्वान। अच्छा, ये तो जो पढ़ता है, जो पेश करता है दलील, उसी की जिम्मेदारी होती है। दलील दे रहा हूँ भाई मेरे पास, आप ये रखें कि हॉस्पिटल में बैठ के किताबें आपको दिखाऊं, मुमकिन नहीं है मेरे लिए। कोई मसला नहीं, परेशानी हम आपको हल कर देना। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, वो कोई मसला नहीं। क़त्तरकु सुन्नता मिन बुग़्ज़ि अली। हाँ, अरबी में लिखना भाई, उर्दू मत लिखना, नहीं आएगा। अरबी में लिखोगे तो आएगा। जी जनाब, अरबी ही में बात चल रही है जी। क्या है ये तहबीर का हवाला है, अल-जामिउ सही अल-मुस्नदुल मौज़ूई अस-सुननुल कुबरा लिन-नसाई। जी एक सेकंड हो जाइए, इसका हम खोल लेते हैं जरा जी।
PDF یہ دیکھو شاید المشتبہ میں سنن میں بھی ہے یہ. نہیں یہ ہے تو بہت ساری روایت میں آئے گا ظاہر بات. ہاں رکو میں سنن نسائی میں میرے پاس دیکھتا ہوں. تو یہ نیٹ کس وقت گڑبڑ کرنے لگا اللہ جانے کیوں. چلیے جب آپ کا نیٹ صحیح ہو جائے تب بات کر لیں گے انشاءاللہ. مجھے بھائی میں بہت دیر سے باہر کھڑا ہوں ہاسپٹل میں, ڈیوٹی ڈاکٹر ہوں یار, اکیلا پسینے میں بیٹھے ہیں آپ کیا جو ہے کولر بند کر میں خود یہاں اے سی بند کر کے بیٹھا ہوں بھائی. عثمان بن حكيم الأودي الكوفي عن خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال كنا مع عباس بعرفات فقال ما لي لا أسمع الناس يلبون فقلت يخافون من معاوية فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك لبیک اللہم لبیک لبیک فإنهم قد تركوا السنة من بغض علی. ارے لعنت بھی پڑھی ہے مولوی صاحب, لعنت کا تو لفظ پڑھا ہی نہیں آپ نے. اس میں نہیں ہے. اچھا اس میں نہیں ہے, میں اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہوں دیکھ لیجیے. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, وہ 2-3 جگہ آیا ہے نا کہیں پہ لعنت. واٹس ایپ پہ چیک کیجیے, اس پہ ذخیرہ فکریات والے گروپ پہ دیکھیے بھیج دیا ہے ہم نے. جی وہ دیکھ عبد القبیر کے پاس اسکین وہ بھی منگا, اس میں مجھے فراد لگ رہا ہے. ہاں اسکین منگا لو. لعنت کا لفظ بول رہا ہے نا. ارے سنیے لعنت کا لفظ غالباً یا تو نسائی میں ہے اور نسائی میں نہیں ہے تو شاید وہ جو ہے نا, کیونکہ میں اس کو دے چکا ہوں ابن خزیمہ میں شاید لعنت کا لفظ ہوگا, دیکھ لینا جو بھی ہوگا. مجھے اس کی سند کیا ہے بھائی, اس طرح تو بات نہیں ہوتی نا. آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور اس کی نہ سند پڑھ رہے ہیں, کچھ چین سے بات کر رہے ہیں. ایک بات, دوسری چیز تو میں کہہ رہا ہوں نا لعنت کا لفظ مت مانیے, آپ چھوڑ دیجیے. مان لیا. اب ہمارا اشکال سن لیجیے کیا ہمارا اشکال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہی امام بخاری نے نقل کیا ہے, ٹھیک ہے, یہی ابن عباس ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو ہے قال وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الاسود عن ابن ابي مليكه قال اوتى معاويه بعد العشاء بركعه وعنده مولى لابن عباس فاتى ابن عباس فقال دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک سنیے بس ایک منٹ آگے ہے انه فقيه, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں آپ کی بات سنیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث متعارض ہے نہیں. اگر متعارض ہے, میری بات سنیے, اس کا میں جواب دے رہا ہوں, آپ بات تو سنیے. سن تو لیجیے میرا اشکال. میں آپ کی پوری بات سمجھ گیا, میں آپ کی پوری بات سمجھ گیا بھائی, میں آپ کی پوری بات سمجھ گیا. بخاری کی روایت کا حال سن لیجیے میرے منہ سے, آپ پھر آپ بات کرنا 1 منٹ, کیونکہ جو آپ نے دلیل دی اس کا حال تو سن لیجیے. حال سنائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی معاویہ بغض رکھتا تھا کہ نہیں, میں نے اس کی دلیل دے دی آپ کو, ٹھیک ہے, وہ صحیح بھی آپ کے نزدیک. ہم نے بھی دلیل. اپنا بن ہے. ارے میرے بھائی آگے میری بات سنیے, جو انہوں نے بخاری کی روایت دی ہے نا, وہ بخاری والے ہٹایا تھا. آپ نے جو روایت پیش کی سننے سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا قول پیش کیا آپ نے, تو بھائی میں اپنا قول پیش کروں گا نہیں تم کو یار. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے حضرت عبداللہ کے لوگ آپ کا سنا بھائی. ارے بندے, اللہ کے بندے, سننے کا حوصلہ رکھو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا آپ نے اور اس کو اپنے دلیل بنایا, یعنی گویا آپ کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بغض ہونے کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی ذہن میں آیا ٹھیک ہے, آپ کے پاس دلیل ہے, یہ آپ کی منطق حجت ہے. ارے بھائی سننے کا حوصلہ رکھو, پوری بات سنو, پوری بات سنو نا. ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یزید کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّ ابْنَهُ يَزِيدُ لَمِن صَالِحِينَ. ارے میرے بھائی یزید کی ابھی بات نہیں چل رہی ہے, آپ یار کہاں پوچھ جاتے ہیں. صحیح سند کے ساتھ ہے یہ. ارے میرے بھائی جب اس کی بات ہی نہیں چل رہی, جب بات سنو, جب بات کریں گے تب ہم بات کر کے بتائیں گے کہ ابن عباس کی کیا مجبوری رہی تھی. خاص شاگرد سلمان نبی صاحب کے خاص شاگرد صاحب پوری بات سن لو, پہلے میرے پوری بات سنو, اس کے بعد اپنی بات کرنا. آپ کا نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول حجت ہے نہیں ہے یار. بہت ساری چیزیں آپ زبردستی کرنے لگے کہ بھائی ہمیں بتاؤ.
दलीलों में से एक दलील ये भी है, ठीक है, मतलब एक दलील है, यानी हज़रत अमीर मुआविया के सिलसिले में उनका कौल दलील बन सकता है अपने। हाँ, इस बुनियाद पर कि वो बोल सकता था, ठीक है। और बहुत है, उम्मे सलमा की रिवायत भी है, बात तो सुन लो, अरे बात तो सुन लो पहले, भरा पड़ा है इब्ने तो सुन लो पहले, बोल रहा है पटर पटर, सलमान नबी आदत यहाँ हटा तो कमेंट्री नहीं बोल रहे हैं, आंख बंद करके भौंक रहे हैं सलमान नबी की तरह। सुनाओ जल्दी, यहाँ हम बोल रहे हैं। हाँ, यजीद के अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में एक सहाबी के कौल को आपने दलील बनाया, यजीद के सिलसिले में वो दलील बन सकता है या नहीं? अरे मुझसे आप यार ये आप टॉपिक हट करके सवाल कर रहे हो ना, वही तो बात आ जाती है। आपसे पहले जो भाई बात कर रहे थे ना, आपसे पहले जो भाई बात कर रहे थे वो बहुत सधी हुई बात कर रहे थे, मुझे मजा नहीं आ रहा है, सधी बात नहीं कर रहे हैं यार, ये कोई मतलब आप नासिर भाई हम ये पूछना चाहते हैं इनसे कि जैसे आपने सवाल किया कि भाई इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल से किसी उम्मती के बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। तो सवाल यह है कि इब्न अब्बास अगर किसी शख्स की तादील कर दें तो मोतबर है, तजरीह कर दें तो मोतबर है, तादील कर दें तो मोतबर क्यों नहीं? अरे मेरे भाई आप एक अकेले इब्न अब्बास नहीं है, बहुत हैं। और जो आपने बुखारी की रिवायत की, मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले उस बुखारी की रिवायत का हाल पता कर लो। उस रिवायत का हाल ये है, यही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इसमें जो है ना रिवायत, एक रिवायत वो एक रकात पढ़ रहे थे और उनसे जब कहा कि भाई ये एक रकात पढ़ रहे हैं वित्र की, तो उन्होंने कहा कि छोड़ो इसको, दाहू इन्नहु फकीह, है ना, यही है ना उसमें लफ्ज़, अल्फाज यही है शायद गालिबन। दूसरे में है, दूसरा सियाक है इन्नहु फकीह। हाँ, अब मैं बात करता हूँ, ये रिवायत बेसिकली क्या है कि अहनाफ के मसलक के खिलाफ है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, सुनिए, सही तौर पर ये अहनाफ के रिवायत मतलब मुखालिफ है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इसी रिवायत को इमाम तहावी ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है और बहुत ही शानदार जुमला नकल किया है इसके आगे, ठीक है। यानी इब्ने अब्बास का उन्होंने पूरा जुमला आगे नकल किया है जिसमें वो कहते हैं कि दाहू इन्नहु फकीह, उन आगे उस तावील करते हैं, यानी वो जो इमाम तहावी है ना वो इस जुमले की बात बताते हैं और वो कहते हैं कि वो उन्होंने तंजिया कहा था, यानी कि छोड़ो इसको, बड़ा फकीह बनता है। मिन ऐन जा बिही हाज़ल हिमार, ये रिवायत, ये अल्फाज इमाम तहावी ने नकल किए हैं कि ये गधा पता नहीं शरीफों को कहाँ से ले आया। ये तहावी ने अपनी तरफ से बढ़ाया उससे बढ़ाएं अपनी तरफ से। अरे मेरे भाई नाउज़ुबिल्लाह, मैं क्यों बढ़ाऊंगा भाई? इमाम तहावी ने अपनी तरफ से बढ़ाए हैं क्या? नहीं, इब्ने अब्बास, दूसरी सनद है उनके पास, इब्ने अब्बास बुखारी की रिवायत में नहीं है। नहीं मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो आप। इमाम तहावी ने इस रिवायत को नकल किया है, ये जुमला नकल किया है, वो सनद आप पढ़िए। आप तो यार यही तो बात है, आप सनद पढ़िए, मैं किताब थोड़ी लेके बैठा हूँ यार, आप वही बात करते हो। आप इस्तिदलाल के मैं अल्फाज पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। हनफी आलिम है इमाम तहावी, मुहद्दिस हैं हनफियों। इमाम तहावी ने लिखा है, इमाम तहावी ने लिखा है कि क्या नाम है इसके सहाबा के ताल्लुक से, वमन अहसनल क़ौल फी असहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही फ़क़द बरिअ मिन निफ़ाक़। मैं इमाम तहावी का कौल नकल नहीं कर रहा हूँ, मैं इमाम तहावी का कौल नकल ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इमाम तहावी का कौल नकल नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं इमाम तहावी सुनिए, हाल बता दीजिए क्या है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इमाम तहावी ने इस रिवायत को पूरी तरह से नकल किया है, पूरी तरह से। और उन्होंने कहा है कि इब्ने अब्बास ने तारीफ नहीं की थी, तंजिया कहा था और कहा था कि पता नहीं कहाँ से ले आया इसको। भाई एक बात हमें बता दीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। तहावी की इबारत से नकल किया, उसकी सनद अलग है, ठीक है। अब हम ये पूछते हैं, मुझे पता नहीं उसकी सनद अलग है, ये जुमला टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा आपको, मेरे को पता नहीं उसकी सनद यही है कि अलग है, ठीक है। हाँ मतलब जब तक ये रिवायत
मोतबर नहीं, जब तक ये चीज मोतबर नहीं, जब तक आप सनद सही मतलब सनद पढ़ के ना बताएं, उसका हाल ना बताएं। अरे मेरे भाई तो रिवायत आपने यार इमाम तहावी जब कह रहे हैं, इमाम तहावी आपके मुहद्दिस हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं आप? भाई इमाम तहावी की अक़ीदतुत तहाविया तो बता रहे हैं, जो मजमूई अक़ायद की किताब है, तो वो उन्होंने इब्न अब्बास का कौल नकल किया है और कहा कि पता नहीं तमाम कहाँ से लेकर के आ गया। नकल किया है मजमूई तौर पर, उसके खिलाफ अगर खबर वाहिद आएगी तो वो मुअव्वल होगी। ये तहावी का जो है क्या नाम है अक़ीदा वो है, उसूल है। लेकिन इमाम तहावी से वाली बात बता रहे हो ना, तहावी के उसूल का आप तोड़ना, ये कौन सी बात हुई? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं रिवायत से तोड़ रहा हूँ, बात खत्म। तहावी की मैं कौल नकल ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि तहावी ने जो नकल किया है रिवायत, वो रिवायत तहावी ने नकल की है, तो आप उसे तहावी का कौल ना कहिए, है ना। तहावी की जो रिवायत है वाहिद होती है, उसके कबूल करने के रद्द करने के उसूल हनफिया के वहाँ, आप उसे यानी हनफिया के यहाँ वो वाली रिवायत ज्यादा सही है जो तहावी ने नकल की है। सुनिए यार कबीर भाई, इस पर आइए मिन मुग़ज़ी अली, है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो तो मैंने बता दिया आपको, वो तो मैंने बता दिया मिन मुग़ज़ी अली वाला तो हो गया किस्सा। फकी वाली बात थी ना, वो मैं बता रहा हूँ कि हनफिया के यहाँ पर वो वाली रिवायत ज्यादा सही है जो इमाम तहावी ने नकल की है, और जो बुखारी ने नकल की है वो हनाफ के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, मुअव्वल है, काबिल कबूल नहीं, मुअव्वल है। वो ठीक है, एक ही बात है, नतीजा वही है, वो मुअव्वल है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कह रहे हैं कि उनका अमल अगर इसके खिलाफ है तो जो है ये साहिब फतुल बारी में कहते हैं फलम यफ़अल शैअन इल्ला बिमुस्तनदिन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो काबिल कबूल नहीं, काबिल कबूल है, मुतअद्दिद मुअव्वल है, लेकिन जो रिवायत है ना, जो हज़रत मुआविया के बारे में है, वो हनफिया शाफिया तमाम के वहाँ वो मोतबर है, उसके बारे में कोई कलाम नहीं। एक बात मेरी बात, उनके यहाँ तहावी वाली रिवायत ज्यादा मोतबर है कि गधा पता नहीं कहाँ से लाया है इसको। मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी चीज जो है, जब इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आप ये बात नकल कर रहे हैं, यही बात इस तरीके की यजीद के बारे में भी इब्न अब्बास कह रहे हैं। यजीद को मत लाओ यार यहाँ घसीट करके, यजीद को बाद में बात करेंगे, मुआविया को तो निपटाओ। नहीं, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मुआविया ने बहुत डरा दिया था लोगों को यार, मुआविया ने बहुत डरा दिया था लोगों को उस जमाने में, फिर कुछ मोतबर नहीं रहा, डर गए थे लोग बहुत ज्यादा। कुछ भी मोतबर नहीं रहा, कुछ नहीं। जुल्म का दौर दौरा था भाई, जुल्म का दौर दौरा था। इमाम अबू हनीफा पहले कुछ कहते थे, दोबारा कुछ कहते थे, डर के मारे भाई। इमाम ये आपको बर्रवादी नासिर भाई, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी में तो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, जैसे अब्दुल कादिर रवायत से नसल की उनकी जिंदगी में तो मुखालफत कर रहे हैं, मरने के बाद तारीफ करने लगे, इतने डर गए, मरने के बाद भाई जिंदगी में नहीं डरे। यजीद ने किसी को नहीं छोड़ा, यजीद ने तो मदीना हलाल कर दिया भाई, यजीद ने मदीना हलाल कर दिया, बात कर रहे हो। अरे अब्दुल कबीर भाई, तुम कह रहे हो कि जिंदगी मरने के बाद डर गए, जिंदगी में नहीं डरे अमर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। अरे यजीद ने मदीना हलाल कर दिया था मेरे भाई, खौफ था बहुत ज्यादा, कुछ नहीं बोल पा रहा था। मदीना हलाल कर दिया था, मदीना हलाल कर दिया था, देख लीजिए 3 दिन के लिए मदीना हलाल था हर्रा में। यार क्या बात कर रहे हो, आप तो हवाई ड्राइविंग कर रहे हो उतनी देर से। बुखारी में मेरे भाई हर्रा का वाक़या बुखारी में मौजूद है, उसका जिक्र। हदीस नंबर सुनो, यजीद ने 3 दिन के लिए हलाल किया, हदीस नंबर सुनो बुखारी में। अरे भाई अब यार मौलवी साहब आपने कुछ पढ़ा है ना, ये तो झूठ बोला है ना। बुखारी में रिवायत यजीद ने 3 दिन के लिए हलाल किया, ये हदीस नंबर सुनो बुखारी में। चलो बताओ मेरे भाई, हर्रा का जिक्र बुखारी में मौजूद है, उसको पढ़। और ये जो तहावी के हवाले से कहा, तहावी में कहा है, मेरे पास वो बाबल जिक्र खुला, मैंने पूरा बाब अभी पढ़ा है, अभी मैंने पूरा बाब पढ़ा, कहीं भी बात मौजूद नहीं है जो तुमने अभी बयान की। यार नासिर भाई आवाज आपकी आवाज पता नहीं किस तरह की हो रही है। तहावी की तरफ मंसूब करके इसने कहा है कि इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये नकल किया है कि मिन अइना जहा बि हाज़ल हिमार। भाई नहीं है तहावी में, मैंने पूरा बात पढ़ लिया, नहीं है इसमें। हाँ एक सेकंड जी दिखाओ तो मैं भी देखूं कहाँ है। नासिर भाई आप थोड़ी आवाज अपनी साफ कीजिए, माइक थोड़ा सा दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने खुद कहा है कि सुनिए जहाँ भी नहीं है शुरू से पढ़ो। एक सेकंड भाई मेरे, जल्दी मत करिए। ऐसा कुछ है, एक सेकंड रुकिए, अभी
حدثنا ابو بکر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمران. پہلا راوی کیا پڑھا ہے؟ ابو بکر. ٹھیک ہے. حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عمران فذكر باسناده مثله الا انه لم يقل الحمار. ٹھیک ہے. تو اوپر والی روایت گئی، نیچے ایک سیکنڈ رکیے. ہاں تو حمار نہیں گا. چلیے آگے. ایک سیکنڈ. صحابی کہاں گئے بھائی؟ دیکھیے میرے پاس پوری تحاوی کھلی ہوئی ہے. اسی خبر رکھیے یار، آپ اتنا یہی معانی الاثار انہی کی کتاب ہے نا، شرح معانی الاثار. ٹھیک ہے. اور صفحہ نمبر 289 ہے اور جلد نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. اور روایت بیان کرتے ہیں، کون کرتے ہیں بھیا؟ غسان مالک بن یحییٰ الحمدانی. ٹھیک ہے. حدثه قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عمران بن حدير عن إكرمة أنه قال كنت مع ابن عباس عند معاوية نتحدث حتى ذهب حذيف ٹھیک ہے من الليل فقام معاوية فركع ركعة واحدة فقال ابن عباس من أين ترى أخذها الحمار. ٹھیک ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ تو کہیں نہیں دکھ رہی ہے اس میں. کیا کون سا نسخہ ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ تو. ارے میرے بھائی یار آپ یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے نمبر یا لفظ بتا دیجیے، ہم تو رات میں ڈال لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا نا. یہ ڈالیے پڑھ کر کے ڈالیے آپ. من أين أخذها الحمار؟ من أين ترى أخذها الحمار؟ من أين ترى أخذها الحمار؟ من أين ترى أخذها الحمار؟ من أين أخذها مصدر يأخذ. یار دوڑی آ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی میں جا رہا ہوں یار، پسینے میں بھیگ گیا ہوں، اندر ہاسپٹل میں جانا ہے. جانے سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ یہ امام طحاوی روایت کر رہے ہیں. امام طحاوی روایت کر رہے ہیں کہ حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عطاء قال قال رجل لابن عباس هل لك في معاوية اوتر بواحدة وهو يريد ان يعيب معاوية. اور وہ چاہتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عبداللہ بن عباس کو عیب لگائے. وقال ابن عباس اصاب معاویة. صحیح سمجھ گئی ہے. ولید میں مسلم کرا دی ہے، امام بخاری کرا دی ہے. وہ سب کچھ میں نے جو دیا اس کو دیکھا. بخاری کرا دی ہے. یہ تو بالکل صحیح کرا ہے. یہ صحابی کی ہے. آپ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا. آپ تو جواب دے رہا ہوں، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں پتا نہیں کہاں وہ روایت نہیں ملی، لیکن یہ روایت اس میں ہے. او بھائی یار آپ کو روایت نہیں مل رہی، بتائیے. یہ فرق کوئی نہیں. ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ، بعد میں بات کرتے ہیں. یہ تو عبدالکبیر بھائی آخری بات سن لیجیے، بس آخری بات. جی تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تھا بھائی قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہے. اس پوری گفتگو میں ہمیں آپ سے سنیے آپ جو بھی ہیں میرے بھائی، میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بولی تھی کہ معاویہ کے تعلق سے جو بے شمار روایات ہیں وہ سب مجموعی طور پر اس بات پر دال ہیں، اور معاویہ کی پوری سیرت اس بات پر دال ہے. ایک منٹ آ گئی یہ روایت ہے نا. سنیے میری بات سنیے. معاویہ کی پوری سیرت جو ہے وہ جو ہے دال ہے اس بات پر کہ معاویہ جو ہے وہ منافق تھا، مومن نہیں تھا. اس نے اسلام سے دشمنی کی، اللہ کے رسول سے، اللہ کے جی میں تو ثابت کر دیا ہوں میرے بھائی. میں نے بہت ثابت کر دیا ہے، میں نے سب کچھ ثابت کر دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نہیں مانتے، انہیں کا قول میں نے پیش کیا کے سلسلے میں نہیں مانتے. آپ کو بات کریے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تم نہیں مانتے.
मेरे भाई मैं आपको पूरी अब्बास का कॉल को तुमने टुकरा दिया, इसलिए वो कॉल दलील नहीं बन सकते। अब अगली दलील पेश करो। क्या करूं? क्या कह रहे हो? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को खुद तुम नहीं मानते। मैंने पेश की, यजीद के सिलसिले में उसको सालिह का नहीं मानते, हज़रत अमीर का उन्होंने ठीक किया नहीं मानते, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु को कातिब वही कहा नहीं मानते। अरे मेरे भाई मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझसे मनवा रहे हो? आप तो यार अजीब बात करते हो। आप मुझसे बातें पूछने आए हो ना, आप पूछने आए हो मेरा मौके पर, मेरे दलाइल पूछने आए हो ना। क्या दलाइल? वही, हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक बात मानो तो सब बात मानो, अगर नहीं मानो तो कोई भी नहीं मानो। भाई यार देखना पड़ता है किस तरह। मैंने तो आपको दिखा दिया, नसई की रिवायत खोल के दिखा दी, उनको दिखा दी, भाई ने बोला भी एक रिवायत सही है, फिर भी आपको पता नहीं। रिवायत भी वही है जिसके अंदर हमने बताया कि भाई जो यजीद के बारे में है। दूसरी चीज ये है, अगली ही रिवायत में इमाम तहावी का ना, उसे आप पढ़ नहीं रहे, पता कर अभी इसने वो तो गलती से आपने पढ़ दी थी, सुन लीजिए अब। अभी क़ाल हद्दसना अबू बकर क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न उमर क़ाल हद्दसना इमरान फज़कर बिइस्नादिही मिस्लिही इल्ला अन्नहु लम यक़ुल अल हिमार। इसमें मुहशिर ने लगाया इस्नादुहु सही, इससे ऊपर वाली भी हदीस सही। तो एक में जो है क्या नाम है कि वो हिमार नहीं कहा है, तो आप ये जो हिमार के लफ्ज़ है कैसे जो है बिल्कुल कतई बता रहे हैं? मैंने कब कहा कतई है भाई, वो देखा है मैंने, तो बताया है आपको। कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। देखिए अब आखिर बात सुन लीजिए मेरी। हमने जो आपकी पूरी गुफ्तगू से समझा है वो ये समझा है कि क़तई सुबूत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निफाक़ पर दलालत करने वाले आसार और रिवायात क़तई सुबूत और क़तई दलाला हैं, बेशुमार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बेशुमार बात वही है, बेशुमार कहते हैं कुछ कहते हैं क्या होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई ये सुनिए, उसमें एक मैं थोड़ी सी बात कर दूं, अगर कोई ये कहे कि कोई एक चीज ले आए जो मुतवातिर हो तो ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। और उसमें जो बुग़्ज़ अली जो है क्या नाम है मुतलक़न रखे, चाहे बुग़्ज़ फिल्ला रखे वो भी मुनाफिक है, चाहे वो बुखारी की हदीस अबग़ज़ लिल्लाहि के मुताबिक कामिल ईमान वाला हो, ठीक है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक भी मरतबा पूरी जिंदगी में कभी सदका नहीं किया ईमान की हालत में, न कभी क़िताल किया, ठीक है, कहीं कुछ साबित नहीं है, इसलिए वो कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना के तहत दाखिल नहीं है। और उनका सहाबी होना दूसरी रिवायात से साबित नहीं है, लिहाजा उनका मुनाफिक होना ज़ाहिर रिवायात से साबित है, और ऐसा कतई है कि उसमें तावील नहीं हो सकती है, ठीक है। और सहाबी होने पर जो मदार है तो वो सारे जो है क्या नाम है इस पर मदार है कि वो सहाबी होना उनका साबित हो, क्योंकि पूरी उम्मत अहले सुन्नत वल जमात और तमाम लोगों ने सहाबी मानते नहीं रहे, इसलिए वो मुनाफिक नहीं है, ठीक है। और फिर जो रिवायात मानना जो सहाबी की डेफिनेशन है, असल में मतलब ये है, मेरी बात सुन लीजिए, बस लास्ट में आपको इसमें वजाहत ऐड कर देता हूं। आपने बहुत सही बात कही है, मेरी वजाहत थोड़ी सी ऐड कर लीजिए। सुन लीजिए, अब ये हुआ आपका दावा सारा, ठीक है, जो हमने समझा। इसमें इसी में मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूं, आपने गलत समझा थोड़ा सा, नहीं सुन लीजिए, वजाहत कर रहा हूं। अब इस पर जो है क्या नाम है जो अहले इल्म वो तो देख लेंगे, है ना, कि कहाँ पर इंफाक है या नहीं है, क़िताल है या नहीं है। अब वो मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए अल्लाह के बंदे, मेरी बात सुन लीजिए, बोलने देंगे हम आपको। एक बात सुन लीजिए, फिर उस पर जब हमने रिवायात का मुतालबा किया तो आपने एक रिवायत पढ़ी, तो फिर उसका हमने माना पूछा, तो आपने एक माना ऐसा बयान किया जो खुद बुखारी की सही रिवायत से बिल्कुल या मुआरिज है, ठीक है। फिर आपने उसके बाद कहा कि तारुफ है, हमने पूछा कि तखसीस करते हैं, आपने कहा तखसीस करते हैं। फिर आपने कहा रिवायात में तारुफ होता है, कुरान में तारुफ नहीं होता। नहीं मेरे भाई, इस्तिस्ना करते हैं, आपको पता नहीं मुझे तखसीसी होता है भाई, अल्लाह के उम्मन से इस्तिस्ना तखसीसी कहलाता है। तो मुझे नहीं पता, आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना वो मेरे को समझ में नहीं आई भाई। समझ में इसलिए नहीं आएगी कि उसके लिए उसूल फिक़्ह पढ़ना पड़ता है हनफिया का, तो ठीक है चलिए, कोई मसला नहीं है, हम तारीफ नहीं करेंगे आप पर। तो फिर आपने कहा वो इंशाल्लाह अहले इल्म सुनेंगे, इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा आपकी। अरे नहीं, अगली गुफ्तगू कब होगी या वक्त ले लो, अगली गुफ्तगू कब होगी वक्त ले लो। मैं पूरा पसीने में नहा चुका हूं मेरे भाई, और हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है आपको। अब्दुल कबीर भाई बोलेंगे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है आपको। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि आप में से कोई एक बंदा ऐसा जो मुंसिफ हो, बातों को इधर उधर ना करने वाला हो, बैठे और बात कर ले, आमने सामने कर ले, ऑनलाइन कर ले। ऑनलाइन चलिए कोई वक्त नहीं कहता, कोई तो भाई आपके वाजिदी से बात करने के लिए तैयार था, उससे नहीं ठीक है, हम बात करेंगे आपसे ऑनलाइन।
कोई भी, आप कौन है? मैं आपको ऑनलाइन आप जानता आए नहीं, थे आप ना, कौन है? यासी साहब ने कहा था तो आप ऑनलाइन आए नहीं थे। अरे नहीं, ना हम इंशाल्लाह हम ऑनलाइन आएंगे। उसमें बातें बनी नहीं हमारी, उसमें थोड़ा सा वो उन्होंने जल्दीबाजी की और चीजों को बाहर निकाल दिया और खुद से लाइव आ गए। वो बातें चल रही थी, ग्रुप बना हुआ था, मैं तो अभी पूरी तरह आप तैयार था। अभी आप आएंगे? हम ठीक है, हम आए ना, तैयार है ना, हम आने के लिए ऑनलाइन, हम आएंगे इंशाल्लाह। आप कौन है? आप हैं कौन? नासिरुद्दीन भाई हैं, मऊ के, बहुत पुरानी बातें हैं अहमद नौमानी जी। नासिरुद्दीन कौन? मैं नहीं जानता हूँ। नासिरुद्दीन अहमद नौमानी अबू जुहैल आदमी के नाम से फेसबुक पे है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बेटर है, कोई नहीं, मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ। कि एक बात को जैसे मिसाल के तौर पे अगर माविया पे बात चल रही है तो माविया ही पे बात चलेगी, आप उठ करके यजीद पे नहीं जाएंगे, उसकी बात चलेगी तब तक दूसरी बात ये है कि अगर मैं दूसरी बात ये है कि अगर मैं किसी बात को, किसी रिवायत को पेश करूंगा तो आप उसके मुआरिज में कोई इस तरह की रिवायत ला करके कहेंगे भाई आप फला रिवायत को मानते हैं तो क्या आप इस रिवायत को भी मानते हैं? ऐसा नहीं होगा भाई। आपको अगर मेरी रिवायत जो मैंने पेश की है उसमें कोई कीड़ा नजर आ रहा है, कोई नुक्स नजर आ रहा है तो उसको बयान नहीं, तब तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक शर्त रहेगी कि जो कुछ भी दलील में पेश किया जाएगा उसको फौरन दिखाया जाएगा, उसकी सनद और मतन दोनों पढ़कर सुनाया जाएगा। देखो इसमें कोई वो नहीं है, दोहराया, लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, मैं पिछले 6 साल से मेडिकल फील्ड में हूँ। मेरा यानी दीनी उलूम से राब्ता नहीं है फिलहाल, और मैं पिछले 6 साल से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी 1 साल से मैं जो है वो हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ गुड़गांव में। तो मेरे भाई मेरा काम ये है कि मैं हॉस्पिटल में ड्यूटियां करता हूँ, तो किताबों से, उन चीज़ों से, ज़बान बयान से रब्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब था तो बहुत था, नहीं ज़ुबान से तो रब्त पहले भी नहीं था आपका, कोई मसला नहीं है। आप बस ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझ भी पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि एराब बसा औकात एराब आगे पीछे होने से मतलब बदल जाता है। अब आप जो पढ़ेंगे जिस एराब के साथ उस एराब उसके एतबार से समझ रखेंगे या नहीं। आपको पढ़ के 4-5 साल 6 साल पुरानी यादें हैं, अभी कुछ माशाल्लाह आप तो बहुत ज़हीन है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए वो अगली तारीख बता दीजिए अब्दुल कबीर भाई, अगली तारीख बता दीजिए, कोई मसला नहीं है। यार भाई ऐसा है, देखो मैं आपको बताऊँ, ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं करता हूँ नाइट ड्यूटियाँ, ठीक है। परमानेंट मेरी 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटियाँ होती हैं। कभी मैं फ्री हो जाता हूँ, जैसे अभी पेशेंट नहीं है तो मैं बात करने लग गया, कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी में बैठता हूँ मैं। और कभी कभी पेशेंट होता है, कभी आईसीयू में ड्यूटी लग गई तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, वहाँ से निकल नहीं सकते आप बाहर। अभी अतवार है, परसों का दिन रख लेते हैं, क्या ख्याल है जी? इतवार को अगर आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, अगर मेरे को कोई ड्यूटी नहीं मिली, ठीक है ना, तो मैं इंशाल्लाह उससे जरूर आपसे बात करूंगा। और अगर मेरे को ड्यूटी मिल गई तो भाई फिर मेरे को देखिए आप एक ड्यूटी के 4000 मिलते हैं तो फिर हाथमी तारीख दे दीजिएगा, हाथमी तारीख। हम तो भाई हम भी अपना काम वगैरह छोड़ के चुकी है, मुझे तो एक दिन भी भाई 2 दिन भी मिलते हैं ना अगर छुट्टी के, तो मैं अपने बीवी बच्चों के पास भागता हूँ। मेरे बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो मैं तो फौरन उनके पास भागता हूँ कि यार अगर 1 मिनट भी, 1 दिन भी मुझे मिल गया छुट्टी का तो मैं सीधा घर जाता हूँ। कभी भाई इतवार के दिन हम आपसे मालूम कर लेंगे, ठीक है? हाँ मुझे आप एक बार मैसेज कर देना, मैं फारिग रहूंगा तो जरूर इंशाल्लाह। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। तो भाई मैं आपके सही करूंगा इंशाल्लाह यार, आप क्या? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। आप जो ये मुद्दा आज बताया है तो इंशाल्लाह आप इसे साबित कीजिएगा, है ना? यही मुद्दा से बात होगी, साबित है। मैं इनको फेसबुक पे साबित है ना, आप साबित कीजिए, ये नहीं होता ना साबित है। अब हम आपसे पूछ रहे भाई सनद, तो आप कह रहे हैं ठीक है, हम तो आप पे तशनी नहीं कर रहे हैं, आप मेडिकल की लाइन में हैं और लिख रहे हैं, बहरहाल तो हमने सोचा कि आपने पढ़ लिख करके ही लिखा होगा। अब हमें क्या पता था स्कैन की दलील आपके पास है, कोई मसला नहीं, हम आपको कोई स्कैन की दलील नहीं मेरे भाई, वो तो जल्दी में अब आपको मैं यहाँ पे लेके तो नहीं बैठूंगा, मेरे घर पे चलिए। मेरे जो सुनिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, मेरे जो बहनोई है ना, मेरे जो जीजा जी हैं वो मज़ाहिर उलूम से फारिग हैं, मुफ्ती हैं माशाल्लाह, अच्छे खासे मुफ्ती हैं वो। और जब मेरी बात उनसे होती है तो मेरे हाथ में, मेरे घर में सही मुस्लिम होती है, तिरमिज़ी होती है, बुखारी होती है, मैं तमाम किताबों को अपने हाथ में लेके बैठता हूँ, कोई मसला नहीं है, खोल करके दिखाता हूँ कि देखिए मौलाना, देखिए मौलाना, कोई मसला नहीं है। तो आप अभी मैं अपने घर पे थोड़ी हूँ ना, हम तो आपको कहीं नहीं रहे कि भैया तुम भूल गए, तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं, आप कह रहे हो ना कि आप स्कैन दिखा रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है? आप इंटेलेक्चुअल आदमी मान
नहीं है। हम इंशाल्लाह इतवार के रोज आपसे राब्ता करेंगे और इंशाल्लाह नासिर भाई आपसे इस मुद्दे पर आज जो मुद्दा आपने क्लियर किया है, ये रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भेजेंगे आपको, इंशाल्लाह मिलेगी, साफ आवाज में मिलेगी इंशाल्लाह, और बगैर तशद्दुद के मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि इंशाल्लाह इतवार के रोज आप ये जो मुद्दे आज बताए हैं आपने सब, तो इंशाल्लाह इसको साबित करेंगे आप, है ना? बुक्स तो साबित हो ही गया भाई, और क्या करोगे आप? नहीं हुआ ना साबित, बुक्स फिल्ला साबित होने से ईमान कामिल होता है। भाई आपने तो बोला कि साबित हो गया, इब्न अब्बास की गवाही मिल गई, और यजीद का भी तादील साबित हो गई, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप तो एक दावे पे दावे कर रहे हैं, है ना? कैसे तो यजीद का भी साले होना साबित हो गया इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल से, भाई मैं आपको बता, आप मुझे बताएं किस तरह से, मतलब आपको किस तरह से दिखाऊं कि वो आप कब मानेंगे? बुक्स क्या दिखाऊं मैं आपको? आपका इस्तिदलाल गलत है ना। बुग्ज़ अली आप क्या दिखाना चाहते हो? फिल्ला भी हो सकता है और बुग्ज़ जो है लिनफ्सी भी हो सकता है। अगर बुग्ज़ फिल्ला है तो कौन सा वाला ले रहे हैं? इब्न अब्बास कौन सा वाला ले रहे हैं जी? इब्न अब्बास कौन सा वाला बुग्ज़ मुराद ले रहे हैं? फिल्ला की मतलब बुग्ज़ लिनफ्सी, बुग्ज़ लिनफ्सी ही मुराद ले रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक। तो फिर हाँ, तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल हज़रत अमीर मुआविया के बारे में मोतबर है। अरे मेरे भाई, आपके लिए क्या मोतबर होगा? आप मुझे वो बताइए। मुझे मोतबर है नहीं, दो ही सूरतें। अगर मोतबर है तो यजीद के बारे में मोतबर क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूँ मोतबर है, लेकिन आप ये मतलब डबल स्टैंडर्ड क्या है आपका? आपके लिए कौन सी चीज मोतबर होगी? आप मुझे बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ रिवायात के उसूल पर रिवायत हो, इस्तिदलाल के उसूल पर इस्तिदलाल हो। अगर मुतारिद रिवायात है, एक जगह आप जो है एक ऐसा माना मुराद लेना है जो दूसरी तमाम रिवायत को रद्द कर दे रहा है, तो कैसे मान लिया जाएगा? बुग्ज़ रखने से आदमी मुनाफिक हो जाएगा, जबकि बुग्ज़ फिल्ला रखने से आदमी कामिलुल ईमान होगा। अब कहीं पर बुग्ज़ अली आ रहा है तो कैसे उसकी तायीन होगी? जब आप तायीन करेंगे इब्न अब्बास की रिवायत से, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद के बारे में साले कहना है, और वो भी रिवायत ठीक दर्जे की है, सही दर्जे की। अब मसला ये है कि वो कौल मोतबर क्यों नहीं मानते? सवाल होगा ना, डबल स्टैंडर्ड होगा। चलिए आप ये उस दिन इतवार की बात कीजिएगा, है ना? ठीक, चलिए इंशाल्लाह। तो ये जो दावे हैं आपके, तो इंशाल्लाह इतवार के दिन जिसको